Hey guys, welcome back to another edition of Some of My Jokes Don't Land. This is Ayan. You are listening to my podcast, and today's episode is going to be awesome. Yes, today's episode is finally about football. I have been meaning to talk about football for like a very long time, but finally I have found the right time and place. Now, couple of things. This podcast is a very special one because it is probably one of the longest podcast I've ever recorded. Also, I've done it with two of my friends from college who are really into football as I am, and so we had a great time. So people who are not even interested in football can watch it because it basically shows that how friends talk and interact and the fun we had, basically that. But yeah, football context is very important. I'll be putting out the date on which we recorded because that is important, because we discussed few things which are contextually different now because of few things. But that's it. I think that's all you need to know. Thanks for coming by. I think you're going to have a great time, so please stick around. I think it's the best if you stick around because it's going to be a very long time. Also, I'm putting timestamps, so in case you're watching this on video, you won't have a difficult time finding whatever you need to watch because it will be time coded. And I think that's all. I think we should start with the podcast. This is Ayan Pathak. You are listening to Some of My Jokes Don't Land. Let's get started, guys. Come on. Hello everybody, welcome to the another edition of this shitty podcast. Today's topic is football, and I have gotten two of my closest friends who are deeply into football as I am. So hello Rohan, hello Nitya, what's up? कैसा चल रहा एकदम मस्त. है? एकदम मस्त. We all have like various different teams we follow, and that's why it's a very good Madrid. channel to talk about. Yes, we'll come about it. But starting में मुझको जानना है दोनों से कि बचपन में जो तुम्हारा पहला इंस्टेंस था जब let's say you started watching football for the first time, or something that attracted you towards football other than playing it, watching football, वैसा कुछ मोमेंट है क्या रोहन? To be really honest, तूने मेंशन किया देखने के लिए, हाँ तो आई गेस मैंने 2010 में जब फाइनल जब बारसा मारा था ना, अरे जैसे अरे मोरिनियो पेप गार्डियोला, वो मैच मैं मतलब देख के पागल हो गया था. मेरे लिए वो सबसे ज्यादा ये था, वो टर्निंग मोमेंट था कि वो देखने के बाद मैं और मेरे को ऐसा इंटरेस्ट हुआ देखने के लिए. वरना उससे पहले 2008 तो फीफा हम खेलते थे, तो खेलते वो दैट वाज माय फर्स्ट फुटबॉल गेम, तो उससे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आया था. ओके. नित्य, आपका क्या है, आपका फेवरेट? मेरा ब्रो, I think पहले initially I think growing up I used to hate two things I love the most right now. One was Cristiano Ronaldo, Yes. and the second was watching football. I used to hate both of those things. Okay. But हुआ ये कि बताता हूँ मैं, because ऐसा था कि I started watching football because of Kaka. I was a huge Kaka fan, and yes. फिर वही Cristiano Ronaldo got into Real Madrid. Then he won the Ballon d'Or next year after Kaka won it. तो ऐसा मेरे मन में थोड़ा सा खराब लग रहा था कि he's dethroning Kaka. हाँ और जो भी है कि काका ही बेस्ट है, कौन है चूतिया, ऐसे टाइप की थिंकिंग थी. सेम मेरा But कैसा वही था? ऐसा इवेंचुअली वही क्रिस्टियानो रोनाल्डो विंस ओवर एवरीबॉडी, वही हुआ. एंड सेम विद फुटबॉल. Yes. मेरे को आर्सेनल का भी शौक लगा था ना, लाइक आई एम अ क्रेजी आर्सेनल फैन. हाँ. और 2008 में जब वो फीफा भी आया, एंड लाइक देयर वाज लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स हु वर काफी इंटरेस्टेड थे. 2003 2004 के इनविंसिबल्स आर्सेनल, फिर मैं मैच देखने लग गया एक का, फिर थियरी ऑनरी, रॉबर्ट पियर्स, इनको ऐसे देख के ऐसा ज्यादा ही मन. और फिर हमारा आर्सेनल का ट्रेडिशन है, जो अच्छा प्लेयर आता जाएगा वो बार्सिलोना खरीद ले. तो कहीं ना कहीं था जाएंगे. बट स्टार्टिंग में, so that was the moment for me. It was very simple.
मैंने भी लाइक ऐसा खेलने से मतलब नहीं, मैं अपने बड़े भाई को देखता था, कजन के, वो फीफा खेलता था और वो फीफा 10 खेल रहा था, आई थिंक 7 खेल रहा था और उसके बाद 10 था, मतलब पायरेटेड होता है तो ऐसा 7 के बाद डायरेक्ट 10, तो 10 में रूनी था तो मुझे रूनी बहुत पसंद था। दैट्स व्हाई आई थिंक अभी तक मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर यूनाइटेड, बट जेन्युइनली मैंने I think 2010 से मतलब रूनी के बाद से मैंने देखना चालू किया, फिर अचानक दिखा कि स्पेन में कुछ लोग मचा रहे हैं दिखते उधर का, तो फिर उधर से तो ये ऐसा एक रेयर इंस्टेंस नहीं है कि बहुत की एक बार्सिलोना फैन यूजुअली सर डजंट लाइक मैन यूनाइटेड फॉर सम रीजन। हाँ, बट अयान के केस में उल्टा है। मेरा उल्टा है बिकॉज जेन्युइनली मेरे को रूनी बहुत पसंद था। लाइक उस टाइम पे वो अकेले ही यूनाइटेड को सब कुछ कर रहा था, वो वैन निस्टेलरॉय वगैरह सब जो थे, जो थोड़े पहले थे, बट लाइक मैंने जब फॉलो किया ना एक्चुअली तब ये निकल चुका था, रोनाल्डो आई थिंक निकल गया था 2009। यस तो 2010 में इट वाज वही था। मेरे को जेन्युइनली बोलूं अभी तो पूछेगा उस टीम में कौन थे याद भी नहीं, मैं सिर्फ रूनी देखा, ऐसा था, क्योंकि अलग था मेरे लिए, मेरे बड़े भाई को भी पसंद। फिर मैंने थोड़े हाइलाइट्स देखे एक दिन ला लीगा के उधर क्या चल रहा है, और फिर मैं पूरा शिफ्ट हो गया। एंड हम आएंगे कि उसके बाद क्या हो रहा है, बट थोड़ा सा ऐसा स्कूल में खेलने का करते हैं कि फुटबॉल खेलने का एक्सपीरियंस क्या था। नित्या तो हमसे थोड़ा ज्यादा ही अच्छा खेला है, बट रोहन तेरा क्या एक्सपीरियंस? मेरा हम स्कूल में है ना, जैसे तू मैन यूनाइटेड फैन था, हमारे जो चेल्सी और मैन यूनाइटेड फैन क्रेजी फैंस थे। हम ऐसे एक एक टीम बांटते थे और एक एक प्लेयर को एक एक नाम दे देते थे। मुझे माइकल कैरिक देते थे, मैं मिडफील्ड खेलता था, मुझे ऐसा लॉन्ग पास कैरिक। हाँ, और फिर उसमें हर टीम में एक दो ऐसा बंदा रहेगा ही जो ऐसा पास करेगा नहीं, इसको रोनाल्डो का नाम दे देगा जस्ट बिकॉज वो कटाएगा और फिर गोल मारेगा। ये तो हमारा भी। तो हाँ, और उसमें वो वही, और एकेडमी जाते जाते थे हम तो, मतलब कहाँ क्रिकेट खेलते खेलते एक तो स्टार्ट किया था, तो कहीं ना ऐसा जजमेंट भी बैठता था। बट फुटबॉल आई गेस उस टाइम पे हमारे इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था हमारे स्कूल में, मैं गुड़गांव में रहता था तो प्रोमिनेंट नहीं था, क्या था उसका? नहीं इतना नहीं था शायद। हम क्रिकेट ही ज्यादा खेलते थे, और मैं हाँ पूरे स्कूल में क्रिकेट ज्यादा खेलते थे। फुटबॉल ये आई डोंट नो कितना बाद में आया ज्यादा क्रेज लोगों को पहले पसंद ही नहीं था, और सिर्फ जस्ट फुटबॉल मालूम है, मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, यही था, और किसी को ये भी मालूम नहीं। ये तो बहुत ही ऑब्वियस। नित्या के हम लास्ट में सुनेंगे क्योंकि उसका थोड़ा बड़ा है, मेरा वाला मैं जल्दी से सुना देता हूँ कि सेम है। लाइक मेरे स्कूल में जेन्युइनली फुटबॉल को बहुत ज्यादा होता था, पता नहीं कोलकाता में है थोड़ा, पर मैं क्लास 3 से, मेरे को याद है मैं फुटबॉल प्रैक्टिस जाता था। क्लास जब 3 से लेके पूरा 10 तक हमारे स्कूल में पूरा अच्छे से था। उस टाइम पे मैं मिडफील्ड में खेलता था पूरा, हमारी टीम में जेन्युइनली कुछ अच्छे प्लेयर्स थे जो पूरा टीम को कैरी करके ले जाते थे, तो वो सब तो खेलने को मिला। फिर 10 में छूट गया बिकॉज 10 में तो बोर्ड्स हो गया, फिर ऐसा प्यार भी हो गया था उस टाइम पे, तो ये सब छूट गया था। प्यार की बातें हम थोड़ा बात अरे तुम लोग कभी रूनी वाले प्यार, ऐसा और फिर ऐसा क्या होता है कि 11th में क्या हुआ कि वापस से नए स्कूल में गया। थिंग इज मेरे स्कूल का 2 ब्रांच है, मैं जिस ब्रांच में था उसमें 11th-12th नहीं था, तो मेन ब्रांच में गया और उधर वापस से फुटबॉल खेलने लगा। पर वो लास्ट 2 साल मैं बस गोलकीपर खेला हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा लंबा था, बाकी ऐसा ड्रिबल करने वाले बहुत लोग थे, तो वो बहुत होता है कि जो लंबा रहता है उनको कीपर बनाते हैं। पता नहीं यार, वो बहुत मैं बदला था मेरे से बच्चे लोग स्टार्टिंग में मेरे से राइट पे डाइव नहीं होता आज तक, लेफ्ट में मैं आंख बंद करके कूद जाऊंगा, इस साइड डाइव ही नहीं होता, बट थोड़ा हाइट एडवांटेज था तो उस हिसाब से तो गजब होता था और बहुत एक्सपीरियंस अलग था। आई डोंट नो तुम लोग कभी ऐसा प्रॉपर खेले हो क्या गोलकीपर हिसाब से, बट बिकॉज हमारा टीम जो 11th-12 में था बहुत ही ज्यादा खराब था, तो बॉल मेरे हाथ में बहुत ज्यादा रहता था तो बॉल टाइम मेरे को बहुत ज्यादा मिलता था, उस हिसाब से तो मजा आता। चलो वही है। फिर तो हम कॉलेज आ गए। नित्या, आपका पूरा स्कूल से लेके आयन ह्यूम को बार के बाहर मिलने, पहले इंट्रोड्यूस करो
आपको अपने कहाँ खेला है, कब तक खेला ऐसे है? शुरू से मैं भी वही बताऊंगा यार, जो हाँ, ऐसे चाइल्डहुड मोमेंट्स है ऑब्वियस वही ज्यादा अच्छे हैं। तो देख यार, एक ऐसे मेरे को तो फीलिंग आती है कि कहीं ना कहीं सबने, जब हम लोग छोटे थे, फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया, क्योंकि या तो क्रिकेट से बोर हो गए थे या तो अच्छा नहीं खेलते थे क्रिकेट। मैं बहुत खराब खेलता, मेरे को बॉलिंग डालना आता था, उसमें भी मैं बहुत छक्के खाता था कभी। तो ये मेरे ग्राउंड के दोस्तों ने, हम सब ने फुटबॉल खेलना शुरू किया। तो फिर थिंक यही बिना किसी ऐसे आई थिंक एजेंडा के, बस हम लोग दिन में आई थिंक 3 बार फुटबॉल खेलते थे, सुबह दोपहर शाम को। एंड हम सब बहुत ही स्किनी थे, ऐसा हमेशा ऐसा धूप से टैंड रहते थे बहुत ज़्यादा, बट वही बहुत मज़ा आता था यार खेलने में। आई थिंक उसी से वी काइंड ऑफ ऐसे डेवलप्ड, और फिर आजू बाजू वाले एरियाज से पैसे लगा के मैच खेलते थे। वही जो भी ऐसा हरकतें करते, लोकल क्लब वाले खेले ना तब। हाँ, ये क्लब भी नहीं बोलते थे इसको, ऐसा कुछ लोग बस ऐसे मारने वाले आ जाते थे कि फुटबॉल खेलना है तो हमको मार देंगे, तुम लोग गोल कर देंगे। हाँ, ऐसे मिलते थे। तो आई थिंक स्कूल तक तो यही था। स्कूल की टीम में भी मैं खेला, बट कभी बहुत अच्छे से नहीं। आई वाज नेवर अ वेरी गुड प्लेयर या वेरी डिपेंडेबल प्लेयर स्कूल में। वही आई थिंक मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इशू भी था वो टाइम पे। आई नेवर यूज्ड टू थिंक ऑफ माई सेल्फ कि मैं थोड़ा अच्छा खेलता हूँ। बट इवेंचुअली मैं 11th-12th घर से बाहर निकला। आई वेंट टू कोटा। तो कोटा में मैंने पढ़ाई छोड़ के सब कुछ किया, एंड दैट इंक्लूडेड फुटबॉल प्रैक्टिस एज वेल। यार नहीं हुआ, नहीं मतलब फुटबॉल अयान जैसा फुटबॉल से हुआ ना प्यार सबको। अभी हम क्यों बात कर रहे रात के 11 बजे अगर नहीं हुआ तो ये आई थिंक मैंने 2 साल तो काफी अपनी फिजिकलिटी पे काम किया, स्टैमिना पे। आई यूज्ड टू रन एवरी डे। तो वही चक्कर में आई थिंक आई गॉट अ लिटिल बेटर देन आई वाज। और फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया आफ्टर 12th, एंड बिकॉज आई डिडंट नो व्हाट टू डू आगे जो भी है। आई टॉक टू माई पेरेंट्स कि मेरे को अभी पता नहीं है, तो उन्होंने टेक अ ईयर ड्रॉप। उसमें आई थिंक फॉर लाइक 6-7 months मैं बहुत ही फ्री था। So I spent all my time morning and evening playing football, and I think that was around the time I ऐसा got to know कि I am better than most people I play around. अच्छा। हाँ, and उसके बाद I thought कि अब थोड़ा एक अलग लेवल पे जाके let's try ourselves out. तो I applied for a trial at Bangalore FC. तो वहाँ पे I was I think I had just turned 18 around वो टाइम पे। तो उनके ट्रायल्स थे चंडीगढ़ में। आई रिमेम्बर माई डैड सेंट मी विथ वन ऑफ हिज बार का वेटर कि तू इसको लेके जा। आई डोंट नो हाउ मैंने उनको कन्विंस की, बट हम लोग फाइनली वी गॉट देयर। एंड 2 दिन के ट्रायल्स थे। पहला सेट ऑफ ट्रायल्स वाज जस्ट कि ऐसा 5-on-5 फुटसल खिला रहे थे वो लोगों को, जस्ट टू सी कि किसको एक्चुअली पोजीशनिंग आती है, किसको टचेस अच्छे हैं, किसमें स्टैमिना है दौड़ने का। दे यूज्ड टू मेक अस प्ले लाइक 5 games इन अ रो 30 मिनट्स के। तो बहुत ज़्यादा थक जाते थे वो टाइम पे। एंड आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, बट ऐसा व्हेन एवर यू फील कि थोड़ा प्रेशर है, पीपल आर वाचिंग, गेट टायर्ड मोर इजीली। मैं तो बहुत थक गया था, एंड आई वाज थोड़ा सरप्राइज्ड कि मेरे को उन्हें अगले दिन बुलाए। अगले दिन बुलाने के बाद इट वाज 11 गेम। तो आई रिमेम्बर मैंने उसमें इक्वलाइजर मारा था। और इन द वेरी लास्ट मिनट तो हमारी मैच 1-1 टाई हुई थी। तो आई थिंक वो मेरे इक्वलाइजर की वजह से मेरे को उन्हें सिलेक्ट किए इन दिस ऐसा 40 मैन का रोस्टर फॉर अंडर 18 बैंगलोर FC। तो फिर एंड ऐसा था कि व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड। तो फिर इवेंचुअली मैं थोड़ा विंग पे आया। एंड बाय द टाइम आई वाज इन द क्लब आई यूज्ड टू प्ले एज अ सेंटर बैक, क्योंकि मेरी हाइट और फिजिकलिटी अच्छी थी। तो मैं ऐसा धीरे धीरे पीछे ही आया। बस गोलकीपर बनता इससे पहले मैंने छोड़ दिया। मतलब रिवर्स रामोस हुआ है बस। एकदम रिवर्स रामोस हुआ है। ओके, तो वही मैं पूछने वाला था कि तेरा पोजीशन क्या था। ओके रोहन, तू कहाँ पे खेलता था ऐसा जनरली अगर खेलता था? मैंने स्टार्ट किया कीपिंग से। हर बच्चा कीपिंग से ही स्टार्ट करता है। वो बड़े लोगों के साथ खेलने जाते हो, उधर तुम्हें वैंडर सार बनना पड़ता है। मेरे को पता नहीं वैंडर सार पसंद आता था, उसको देख देख के मैं सीखा।
फिर जाके इट्स मोर लाइक मेरा विजन काफी अच्छा था पासिंग, पास बहुत अच्छे था, मैं मिडफील्ड ही खेलता था, स्ट्राइकिंग में कभी नहीं जमा, विंग्स पे जाता था। फिर हाँ मैं मिडफील्ड राइट विंग, और उस टाइम पे मुझे ओजिल पसंद था, तो मैं उसके हिसाब से ही खेलूंगा, वो जा पोजीशन में खेले उधर मैं खेलूंगा। टर्की में तो टर्की में, जर्मनी में तो जर्मनी में कहीं पे। हाँ वो कभी कैम, कभी फिर लेफ्ट विंग, राइट विंग, कभी भी कहीं पे भी खेलता है वो एकदम। तो आर्सेनल आया अभी, हाँ अभी हम थोड़ा देखते हैं। इसके बाद मैं पूछने वाला था एक क्वेश्चन, बट ऐसा नित्या थोड़ा हमारे इंडियन फुटबॉल के बारे में बात किया थोड़ा सा, तो थोड़ा उससे ही पूछता हूँ कि तू तो क्लोजली यू हैव सीन के क्या होता है, लाइक यू हैव कम क्लोजेस्ट अमंग्स थ्री ऑफ अस। तो जैसे एवरीबॉडी नोज कि इंडिया को फुटबॉल में स्लीपिंग जायंट्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे ग्रोथ से हम आगे बढ़ रहे हैं इसमें, लाइक हमारे आई थिंक 10-20 साल में वर्ल्ड कप होस्टिंग के भी चांसेस बोल रहे हैं। तो एक टाइम था 50-60s में जब ऐसा इंडिया मचा रहा था फुटबॉल में, फिर इतना बड़ा गैप हो गया। तेरे को पर्सनली क्या लगता है, रीजन क्या है, ऐसा कुछ है क्या, तूने देखा भी है पास? एक थोड़े ऐसा पॉलिटिकल रीजंस को हटा दे कि एक ऐसा एक स्पोर्ट में टीम अच्छा कर रही है तो उसी पे फोकस करते हैं, उसको हटा दे हम लोग। तो आई थिंक उसके अलावा यही है कि यार ऐसा होता है ना कि व्हेन यू सी समवन डूइंग समथिंग, जैसे क्रिकेट में एवरीबॉडी इज डूइंग सो ग्रेट, तो ऐसा बच्चे भी यही सोचते हैं कि बड़े होके आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। ऐसा फुटबॉल का जो हमारे ऐसा घर के पास वाले प्लेग्राउंड में बहुत लेट माहौल आया है। इवन यू इमेजिन कि तेरे घर के आसपास में हाउ ऑफन डिड यू सी पीपल प्ले फुटबॉल व्हेन यू वर वेरी यंग? आई डोंट थिंक वेरी ऑफन। सब आई मीन कोलकाता में प्रोबेबली बहुत ही ज्यादा अलग सिचुएशन, कोलकाता में बहुत ज्यादा, इधर उल्टा है थोड़ा सा, बट हाँ अरे इधर सब लोग जाके अभी बायर्न म्यूनिख खेलने हैं। तू जो बोल रहा था नित्या, उसका मैं एक छोटा चीज बताता हूँ, इसका रीजन क्या है। तू जो बोल रहा है इसका है कि पहले जेन्युइनली 83 के पहले जब हम वर्ल्ड कप जीते क्रिकेट में, फुटबॉल वाज मोर प्रेवलेंट। क्या हुआ 81 में इंडिया में टेलीविजन आया पूरा, ठीक है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी गॉट टू सी वर्ल्ड फुटबॉल, एंड हमको दिखा एज एन ऑडियंस के उनका स्टैंडर्ड्स कितना ज्यादा हाई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन ऑडियंस वाज वाचिंग यूरोपियन फुटबॉल, एंड नेक्स्ट जस्ट 2 साल बाद इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया। तो एक हमको स्पोर्ट्स मिल गया जहाँ पे हमको लगता था हम बहुत अच्छे हैं, बट हमको रियलाइज हुआ शायद हम उतने नहीं हैं, एंड एक स्पोर्ट्स में हम वर्ल्ड के विनर बन गए। तब से ऐसा माना जाता है कि हमारा थोड़ा कम है, बट हाँ वही है। कोलकाता में थोड़ा सिचुएशन अलग है, बिकॉज पता नहीं यार, इधर कल्चर बहुत ही ज्यादा है फुटबॉल खेलने का। क्रिकेट का कल्चर आई थिंक पॉपुलराइज सिर्फ और सिर्फ सौरव गांगुली की वजह से हुआ है, नहीं तो फुटबॉल ही है अभी तक। मतलब वर्ल्ड कप में आओ तो तुम्हें ऐसा साउथ अमेरिका लगेगा कभी, तो वही है, वही रीजन है। तेरे को लगता है क्या रोहन कुछ स्पेसिफिक और रीजन हो सकता है? लाइक तेरे को लगता है कि हमारा, बिकॉज हम लेट्स से साउथ ईस्ट एशिया से है और वो लोग यूरोप से मोस्टली है, हमारा जेनेटिकल डिसएडवांटेज है क्या कुछ? तेरे को लगता है कैसा? आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील होता है कि टैलेंट है हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं शायद सपोर्ट नहीं मिलता है उनको, इतना पॉपुलर नहीं है शायद, प्रायोरिटाइज वो एक अपना जो स्पोर्ट्स जो कमिटी है उस बेसिस पे भी नहीं मिलता है उनको, वो सपोर्ट नहीं मिलता है, तो शायद कहीं ना कहीं बहुत लोग गिव अप कर लेते हैं पहले से ही। क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर लिया तो फिर मतलब सारे फंड्स हो, अकेडमीज हो, मुझको मेरा भी वही है। आई थिंक हमारा वो ग्रास रूट लेवल से बिल्ड नहीं हुआ है स्ट्रक्चर अभी तक, पता नहीं। आई टेल यू, आई लीग भी मतलब बहुत लोगों को, मतलब मैं जानता हूँ, बचपन में भी मैं जानता था, पर बहुत लोग थे उनको नहीं मालूम है आई लीग क्या होता है। ISL आने के बाद वो जितना पॉपुलर हुआ, उसके बाद लोगों को ऐसा समझा, अरे उनको आई लीग नहीं मालूम, ISL मालूम है, उनको ऐसा बताना पड़ा ISL आई लीग पहले आया है और ज्यादा प्रोमिनेंट है, बट कहीं ना कहीं वो ऑफिशियल लीग देखे तो इट्स आई लीग, ISL थोड़ा सा मनी मेकिंग चीज। इस साल बदल गया, पता है, मेरा भाई दिखा रहा था, इसमें ईस्ट बंगाल है ISL में, और ATK और मोहन बगान तो मर्ज हो चुके हैं,
वो तो होना ही है। और ईस्ट बंगाल का भी कुछ है, पता नहीं, मेरे को देखते एनीवे थोड़ा ऐसा सीरियस में चले गए, थोड़ा बकचोदी में वापस आते कि तो पहले हम डिसाइड हो गए कि हमने जान लिया कि हमने देखना कब शुरू किया। अब जो पहला अलिजेंस था कि मैं इस टीम को अपना जीवन समर्पित करता हूँ, वो टीम कौन सा था और स्पेसिफिक प्लेयर कौन सा था जो तुमको अट्रैक्ट किया उसके लिए? रोहन। ये नित्या पहला बोलेगा। अच्छा ठीक है, अरे नित्या अगर मल्टीपल टीम्स हुए तो चलेगा, बट स्टार्टिंग वाला फर्स्ट टीम कौन सा? नहीं, मेरा तो आई थिंक शुरू से ही देयर हैज बीन वन टीम, रियल मैड्रिड ही रही है। एंड मैंने मेंशन किया शुरू में भी कि इट्स बिकॉज ऑफ काका एंड नॉट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो ऑब्वियस चॉइस है। ऑब्वियस चॉइस है सबका। हाँ, बट वही है कि यार काका व्हेन ही केम फ्रॉम एसी मिलान तो वही वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर था वो। एंड ऐसा आई डोंट नो, आई प्रेफर लुकिंग अप टू दीज प्लेयर्स, जैसे शाबी अलोंसो है, क्रूस है, काका है। They're not, I mean, Kaka was usually faster than both of them, but they make ऐसा players look very easy. They're very easy going. जैसे बहुत ही genuinely ऐसा लगता है कि they're not trying very hard, but सब कुछ बहुत easily हो जाता है उनके साथ, ऐसे type के players. So I think I followed Real Madrid because of Kaka. और फिर eventually वो टीम ने जो कमाल किए है उसकी वजह से साथ में रह गई। गैलेक्टिकोस पूरे। रोहन तेरा क्या है बोलो? मेरा एकदम फर्स्ट टीम में बोलो तो I'll go with Manchester United just because मुझे उधर रोनाल्डो। अभी वैसा नहीं है, ऐसा बोले जिसको तुमने देख के अच्छा नहीं लगा, इसको देख के बोला अब से मेरा जीवन तुम्हारे लिए है। वो मोमेंट कौन सी टीम के लिए था और पहला प्लेयर कौन था उस टीम का? यूनाइटेड हो तो चलेगा, बट तुम आर्सेनल पहन के बैठे हो तो हाँ, मतलब आर्सेनल ही है। मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को देख के ऐसा सीखा हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं मैं आर्सेनल को फॉलो करने लग गया, उनकी हिस्ट्री जानने लग गया, उनका प्ले देखा, तो वेंगर बॉल जो हम टैक्टिक्स थे, कहीं ना कहीं बार्सिलोना और आर्सेनल मेरे को जमता था। ठीक है, मेरा फर्स्ट प्लेयर ऐसा आई आइडलाइज्ड वाज रोनाल्डिन्हो उस टाइम पे जब बार्सिलोना में था। तो कहीं ना कहीं मुझे बार्सिलोना भी पसंद था टैक्टिकली। वो मैं मिडफील्ड प्लेयर हूँ, ठीक है, क्या हाँ मैं ऐसे ही करता था, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कहीं ना कहीं ऐसा मेरा एकदम फिक्स नहीं था। मेरे को फुटबॉल देखना पसंद था, बट बाय द वे मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ। ओके, और आर्सेनल आगे है। डालो यहाँ पे अपरिचित है ये सच। 2012-13 के बाद मैंने ऐसा रियल मैड्रिड स्विच किया। मैंने बार्सिलोना का गेम मैं बहुत कम बार देखा हूँ। अच्छा, बता रहा हूँ 2010 तेरा स्टार्टिंग वाज यूनाइटेड में, तेरे को एंडरसन, रूनी वगैरह पसंद थे, पर मोस्टली ऐसा प्यार हुआ तो आर्सेनल से हुआ। और वो बहुत ज्यादा कोई प्लेयर था स्पेसिफिक स्पेसिफिक दो नाम ले सकता हूँ? हाँ 2 3 6। मुझे फैब्रेगास बहुत पसंद था और वैन पर्सी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, इसीलिए बारसा भी पसंद आया जब फैब्रेगास। वही तो मेरा सिंपल है बहुत, मैं पहले से बारसा हूँ, अभी भी बारसा था, मुझको और कोई टीम से मतलब नहीं। यूनाइटेड मेरे को थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वही रूनी के वजह से, और मेरे को उनका स्टेडियम मस्त लगता है, ऐसा लगता है कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है फुटबॉल में, तो उसके वजह से। और फीफा में जल्दी हारते हैं उनसे। हाँ ऑफ कोर्स, इसीलिए। बट वही है मेरा तो लाइक आई थिंक मेरा तो स्टार्टिंग से मेसी है। मैं मेसी को ही देखता था, उसी के हाइलाइट्स आते थे। मैचेस देखना, आई थिंक फुल मैच देखना इंडिया में पॉसिबल ही नहीं था, मेरे लिए तो नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि टाइमिंग जो था और माँ बाप सुला देते थे उस टाइम पे, तो देखते हम हाइलाइट्स ही थे। और मुझको लाइक उसका ये पसंद आया था कि जेन्युइनली कि ऐसा बच्चा है पर सबको ले रहा है, ये मेरे को बहुत मस्त लगता था। और फिर आगे जाके उसको तुमने देखा और क्या देखा, तो उस वजह से था। और मेरे को बहुत ही नेचुरल लगता था। मैं रोनाल्डो को जेन्युइनली हेट करता था स्टार्टिंग में, जो हर बारसा फैन करता। मैं मैड्रिड को पता नहीं क्यों मेरे को पसंद ही नहीं आया। लाइक आज भी मैं मैच देख रहा था, बट मैंने खोला था ये सोच के कि चलो वापस टूटिया टीम से हार जाएगा शायद, देखते हैं। मेरा मोटिव ही था ये देखने का।
बट वही है कि वही था मेरा फर्स्ट टीम, तो मैं मेसी को ही फॉलो करता था उस टाइम पे, तो उसी से आ गया। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम मैंने इनको भी दिया, मैंने थोड़े टाइम के लिए सोचा था वापस यूनाइटेड पे शिफ्ट करता हूँ, जब वैन पर्सी आ गया था वापस, वैन पर्सी आया था यूनाइटेड में, आई थिंक 2013 में या फिर 12 में उस टाइम पे, तब मैंने थोड़ा सा वापस देखने चालू किया था, बट मैं जेन्युइनली प्रीमियर लीग छोड़ दिया था फॉर 4-5 years देखना। फिर मैं वापस अभी 3-4 साल से वापस थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ, लास्ट 2 ईयर पूरा ऑलमोस्ट हर मैच देख रहा हूँ जब भी टाइम मिलता है। मैं वही पूछने वाला था इसी टॉपिक पे जो मैं बोला थोड़ा सा, कि हमको फुटबॉल देखने का रात को होता था, चैनल पे आता भी, अभी तो फेसबुक पे आता है, तब पता नहीं कहाँ पे आता था लाली का। हम रोहन तू तो प्रीमियर लीग देखने वालों में से था, तो तू देखता कहाँ पे था और तेरे टाइमिंग्स वगैरह मैच करते थे? बेसिक क्वेश्चन है कि कुछ अलग जाके करना पड़ा है कि कभी मैच देखने के लिए? मैं प्रीमियर लीग वगैरह लाइव बहुत रेयरली देखा था, लेकिन मेरा असली देखना लाइक 2010 फीफा जब था, वर्ल्ड कप था, तो मैं ऐसा रात को, पता नहीं मेरे को शौक था, डैड को बोला मैं देखेगा रात के 12:30 बजे शायद, और फिर पापा बोला आप भी आ जाओ, तो मैं एक रात डैड भी आए थे, अर्जेंटीना का मैच था, तब ऐसा मेसी ने स्कोर किया था। मैं बता रहा हूँ मैं 10 वर्ल्ड कप में भी अर्जेंटीना से जर्मनी से हारा था क्वार्टर फाइनल्स में, और मेरे को पता था मेरे को मैच देखना ही है, पर उस दिन मेरे मम्मी का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, मेरे को अभी तक याद है। मैं गाड़ी में बैठा था, सब लोग उधर डॉक्टर के पास गए थे, मैं फोन में ऐसा रेडियो पे सुन रहा था कि अरे अर्जेंटीना मार दिया एक गोल, उधर 4-0 हुआ था आई थिंक उसके। फिर मैंने थोड़ा गाड़ी से निकला, थोड़ा ऐसा खिड़की में झांका तो देखा एक आदमी के घर पे चलता है, वो देखना मैं चालू किया और उसने ऐसा विंबलडन या कुछ हो रहा तो उस पर लगा दिया उसने, पता नहीं, तो वो मैच तो मैं देख ही नहीं पाया। मुझे लगता है मैं नहीं देखा इसलिए अर्जेंटिना हार गई, मेरे लिए है थोड़ा सा एकदम होता है मेरे साथ भी। मैं पहले फुल मैच देख ही नहीं पाता था, पहले मैं वो बहुत लाइक ऐसा हाइलाइट्स ही देखता था, कौन स्कोर किया, क्या गोल मारा, वही जब 2010 में तो मुझको बस वर्ल्ड कप का ही पता था, क्लब का मेरे को उतना नॉलेज ही नहीं था, बस हाइलाइट्स। मैं बोल रहा हूँ ना, वो बारसा वाला जो मैच था एल क्लासिको, वो मैं पूरा देखा भाई, मेरे को याद भी नहीं। उसके बाद मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया। आपका क्या है, आपका कुछ है क्या ऐसा कांड जो आपने किया हो मैच देखने? देखो वो मेरे को एक बात क्या याद है अच्छे से, कि पहले जैसा इंटरनेट के नाम पे ऐसा एक डोंगल आता था, हाँ, वो उसमें ऐसा दिन का 1 GB मिलता था। तो वो एक अभी भी वेबसाइट है जिसमें कभी कभी स्ट्रीम करता हूँ, Ronaldo7.net। वो तो अभी मैं देख रहा था, मैं भूल ही गया था, फेसबुक पे आता है लालीगा, मैं उधर खोल के बैठ गया। हाँ, तो वो वेबसाइट पता नहीं कितने साल से, बहुत लोगों के दिन बनाए हैं वो वेबसाइट ने, तो उस पे मैं हाफ टाइम तक मैच देखता था क्योंकि 1 GB खत्म हो जाता था और पूरे दिन भर मैं गाली सुनता था उसके लिए कि तूने पूरा डेटा खत्म कर दिया, मेरी बहन फेसबुक पे चैट करी। ऐसा होता था। बहुत अजीब। सोनी पे पहले आता था क्या? सोनी 10 पे आता था, स्पोर्ट्स पे आता था, 10 स्पोर्ट्स पे आता था, वो फिर मर्ज हो गया पूरा। एक तो शाम को पूरा सो गया था ऐसे ही यार कि रात को देखना है मैच, उठेगा, डैड उठते थे मेरे साथ, 20 मिनट देगा, बोर हो गए, सो गए। फिर मैं पहली बार, मेरे लिए वो ऐसा फर्स्ट टाइम मैं अकेला नाइटर मारा पूरा 3 बजे 3:30 तक मैं ऐसा। मेरा 14 वाला वर्ल्ड कप फर्स्ट है जो मैं स्टार्टिंग से एंड तक मेरे को याद है कि ये हुआ है। ये 14 वाला वर्ल्ड कप, 10 के टाइम पे आई थिंक हम लोग बहुत ही छोटे थे, 11-12 तो बस शकीरा के नाम पे हम ऐसा देखते, गाने बहुत सुने मैंने वो वर्ल्ड कप गानों में से। और पता है उस टाइम के बाद से एक्चुअली बहुत लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, मतलब आई गेस, और वो सीजन रहता है ना, वर्ल्ड कप है और फीफा चल रहा है तो खेलेंगे फुटबॉल, IPL आ रहा है तो ही क्रिकेट खेलेंगे। ये गाने की बात किया ना, मेरे को रिकी मार्टिन का एक गाना पता था फुटबॉल का, कप ऑफ लाइफ, ऐसा 2002 वाले में मेरे सुना था, फोन में आ गया था कहीं से। फिर नेक्स्ट वाला मैंने वो वाका वाका और वेविंग फ्लैग ही सुना है 14 का, उसके बीच में मेरे को याद नहीं, फिर तो बाकी वाले आ गए।
एनीवे तो जेरार्ड पीके ने जो ऐसे फोकट की पब्लिसिटी लिया है वो गाने में बीच में आके, मेसी भी है, मेसी भी आता हाँ है, वैसी भी है, अरे नेमार भी आता है गोल भी मारते हैं। इंटरसेप्शन नेमार बस नहीं तुम था, फील्ड पे नेमार कर नहीं लेते था। तो अच्छे डिफेंडर। 2014 में जब फुटबॉल वर्ल्ड कप था, हमारा स्कूल शिफ्ट हुआ था नया बिल्डिंग में, और स्मार्ट क्लासेस आए थे हमारे, पता है ना स्मार्ट क्लास होते हैं जहाँ पे प्रोजेक्टर आता उस है। टाइम पे 14 में वर्ल्ड उस कप टाइम के पे टाइम। था। अच्छा हाँ 14 हमारा में, एक्चुअली स्टार्टिंग में आ गया था थोड़ा जल्दी, क्योंकि वही बोला ना बिल्डिंग बदला तो पहले ही ले लेते हैं बाद में क्यों लेने, ऐसा कुछ। हाँ तो उसमें कोई भी टीचर फ्री पीरियड पे वो ऐसा इंटरनेट खोल के उसमें वाका वाका चला देते थे, पता नहीं क्यों, और फुटबॉल हाइलाइट्स के पीछे वाका वाका चल रहा है, तो ऐसा हम देखते थे क्लास में बैठ के। पता मैं नहीं बताऊं, वो गाना इतना ट्रेंड होता था, गणेश उत्सव हो, दुर्गा पूजा हो, बच्चे लोग ये गाने पे नाचते, वाका वाक सबको शकीरा बन। 14 इसीलिए लाइक तू मेरे को पूछेगा, मेरे को अर्जेंटीना का जो मैं फैन हूँ बिकॉज मेसी खेलता है, मेरे को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा याद है। मेरे को उतना शायद 18 भी याद नहीं है जितना 14 याद है, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड। इसके पहले हम घुसे, एक क्वेश्चन में और सवाल पूछ लेता हूँ कि मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं बोल दे रहा हूँ मेरा फेवरेट टीम है बार्सिलोना, यूनाइटेड थोड़ा थोड़ा कभी है, नित्या का मैड्रिड है, मैड्रिड है, मैड्रिड ही है, तुम्हारा अपरिचित जैसा कुछ भी है पता नहीं, आर्सेनल भी है, यूनाइटेड भी है, बार्सा भी है, मैड्रिड भी है। पहले था वे, ठीक है, अभी सिर्फ दो टीम, दो आर्सेनल और मैड्रिड, ठीक है। हाँ 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 अब हम सबको एक एक मोमेंट बोलना है जब से हमने देखना चालू किया है जो अपना फेवरेट है अपने टीम का मोमेंट, और एक मोमेंट बोलना है जो मतलब नहीं होता तो बेस्ट होता है। नित्या का तो 3 चैंपियंस लीग है तो उसको कुछ भी नहीं, पर चलो रोहन तेरे से स्टार्ट कर। फर्स्ट पहले सब अच्छा वाला बोलेंगे फिर सब बुरा वाला बोलेंगे। अच्छा, अच्छे तो बहुत है, बुरे बहुत कम है आर्सेनल के लिए वैसे तो, वो तो है ही। और मैं बोलूं सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मैं फैक्ट बता देता हूँ, इस साल प्रीमियर लीग में जुमा ने ज्यादा गोल मारे हैं ऑबामेयांग। प्रोसीड। देखो अच्छे बातें टाइम के साथ जाएंगे, हम अच्छी बातें बोल रहे थे, सॉरी। बाय द वे ये सीजन के बारे में बात नहीं होगी ना? अरे सब के बारे में, इसके बारे में तो करेंगे, अच्छा, प्रेडिक्शंस लेंगे। तुम पहले ये बोलो। अच्छा बेस्ट मोमेंट मैं बताऊं, थियरी ऑनरी ने रियल मैड्रिड के अगेंस्ट चैंपियंस लीग में गोल मारा था। हाँ, तो मैच जीता था आर्सेनल। हाँ, तो लाइक ऐसा काफी आइकॉनिक था कि यार ऐसा इंग्लैंड का टीम ऐसा दुखी हुआ है तो दोनों के दुखी हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, और दुखी मोमेंट अगर वो ना होता है, ऐसा ना क्वेश्चन? नहीं दुखी बाद में बोलते हैं, पहले ही बोल देते। अच्छा, तो तूने ये अच्छा किसका था? आर्सेनल का था अच्छा मोमेंट? आर्सेनल का था। मैड्रिड का अच्छा मोमेंट क्या था? मैड्रिड का यार मेरे को पहले के तो अच्छे लगते, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा ज्यादा इमोशनल तब फील हुआ था जब रोनाल्डो ने बाइसिकल मारा था यूवेंटस के अगेंस्ट 2017। बहुत हम तीनों ने साथ रोने पे आ गया। गजब था। मतलब बस वही होता है ना, एक दो प्लेयर ऐसे होते हैं कि तुम चाहे जितना भी हेट करो, तुम मतलब उसको बिना देखे रह नहीं सकते, करवा लेते अपने आप को। रोनाल्डो वैसे वाला ही है ऐसा। नित्या आप बोलो, आपका मैड्रिड का फेवरेट मोमेंट क्या है? मैड्रिड का यार देख, आई थिंक जो भी मैड्रिडिस्टा होगा उसका फेवरेट मोमेंट इज 92-48 बाय सर्जियो रामोस। हाँ, तो जो लास्ट मिनट इक्वलाइजर अगेंस्ट 2013-14 एथलेटिको में, वो ऐसा स्पेशल क्यों भी है कि आई थिंक आज तक मैंने जब से मैड्रिड को फॉलो किया है, मेरे अकॉर्डिंग द बेस्ट कोच मैड्रिड हैज एवर हैड इज कार्लो एंचेलोटी। उसके अंडर में ऐसा मैड्रिड 7 या 8 गोल की मार्जिन से जीतता था ला लीगा में कंसिस्टेंटली, और उसी ने ला डेसिमा लाया, उसने गैरेथ बेल को साइन किया, उसने हामेस को लाया, उसने काफी एक अच्छी टीम बनाई थी। एंड उसके बाद आई थिंक वो वाला मोमेंट वाज द बेस्ट मैड्रिड मोमेंट। आई थिंक इवन आफ्टर 3 कंटिन्यू चैंपियंस लीग, आई थिंक वो वाला मोमेंट हैज टू बी द बेस्ट। मेरा भी वैसा ही है थोड़ा सा। हाँ बोलो।
हाँ, और अगर वर्स्ट पूछो वर्स्ट तो आते हैं बेस्ट वाला सब बोल Okay. देते। तो मेरा बेस्ट मोमेंट, मैं जब सोच ही रहा था या बोलूं, मेरा दो कंटेंडर था। एक था वो पीएसजी के अगेंस्ट जो कमबैक था हथकुरा, एकदम वो बहुत ही ज्यादा उसमें वर्स्ट का बहुत बस आने का वेट कर रहा बहुत हूँ। ही ज्यादा था, अच्छा वाला मोमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा होगा। हाँ, तो मैंने वही कंसिडर किया कि ये मेरा नहीं है। मेरा बेस्ट मोमेंट है बारसा वर्सेस बायर्न म्यूनिख, दूसरा वाला जो हम सोच रहे हो वो वाला नहीं, 7-0 जिसमें मेसी ने नॉयर को चिप किया था, वो वाला मोमेंट। एकदम और मुझे याद है मैं अकेला देख रहा था रात के, ऐसा 1-1:30 बजे, इतने बजे भी होता है, और उस टाइम पे मैंने शायद तभी ऐसा मम्मी पापा को बोला नहीं मैं देखूंगा, ऐसा जिद करके देखने बैठा था। और ऐसा मतलब अकेला ऐसा पूरा ऐसा चिल्ला भी नहीं सकता कि नॉयर को चिप कैसे कर दिया भगवान। अरे वो तो ठीक है, नॉयर छोड़, उसके हाँ। पहले बोटिंग का जो पैर तोड़ के वो गिर गया था, अलग मोमेंट था वो, मतलब बोटेंग की ओवरऑल फीफा में वो इस मैच के बाद से सिर्फ गिरी है, कभी अच्छा नहीं हुई। तो मेरा तो वही है, आई थिंक बारसा मोमेंट से ज्यादा ये मेसी मोमेंट है। बारसा मोमेंट बेस्ट हो तो शायद वो पीएसजी वाला है, बट ओवरऑल तो ये वाला मेरे को, मतलब मेरे को याद भी नहीं, शायद 5 साल पहले बारसा चैंपियंस लीग जीता था, मेरे को याद भी नहीं है अभी कि फाइनल में हुआ क्या था, बट वो मोमेंट याद है मेरे को। आई थिंक वही सीजन था शायद, वही सीजन था। तो वही था। अब वर्स्ट पे आते हैं रोहन, आर्सेनल का वर्स्ट क्या है? तो ये स्कोर लाइन वापस दोहराया जाएगा आपके थ्रू। मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल ओल्ड ट्रैफर्ड 2011 and ate too much. Arsenal ate too much that too day. much, yes. So, वो मैच देखा जाता है क्या? देखा मतलब हाइलाइट्स ही देखने का, 2 गोल बस जो आर्सेनल ने मारे वही देखने का। और मैड्रिड का वर्स्ट मोमेंट क्या था? नहीं देख, उसका ही है। उसका 2 टीम है ना। अरे हाँ, भूल जाता हूँ मैं। अच्छा अरे हाँ, मैड्रिड का ना वर्स्ट हाँ। हुआ है क्या कभी? हाँ बल्लो मॉडेस्ट। एक आदमी टी शर्ट उतारा था, याद है क्या? कौन सा? अरे हाँ, वो सब नहीं है, वो सब नित्या है, वो कब नित्या हुआ? निकाल रहा वो है। सब कब हुआ? तू अपने से निकाल पहले। कह सकता है मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग था वो पॉइंट टेकन। यार मेसी जो मारा है ऐसे एंड मौके पे, कौन मारता है यार? रोनाल्डो सब गाली देने लग गया। यार कौन मारता है यार? वो बहुत गंदा मोमेंट था। कह सकता है वन ऑफ द हार्ट ब्रेकिंग है, ऐसा really वर्स्ट मोमेंट था रियल मैड्रिड के लिए। जीतता मैच हारा हुआ। नित्या, मैं तेरा गेस कर सकता हूँ क्या पहले? कर ले, बट प्रोबेबली वो नहीं है, तू बोल। ये आयाक्स वाला मैच है क्या? नहीं, आयाक्स वाला मैच नहीं है। अच्छा, ओके। बट बहुत ही सिमिलर स्कोर लाइन और सिमिलर सिचुएशन की मैच बताता हूँ मैं। हाँ। 2012 UCL सेमीफाइनल, रियल मैड्रिड डॉर्टमंड। अरे तो पहला लेग में लेवेंडोस्की 4 गोल मारा रियल मैड्रिड को। हाँ। और फिर रोनाल्डो ने 1 मारा 4-1। सेकेंड लेग में मैं वो क्या, कौन सी गंदी गाली दूं मैं बेंजेमा को, मेरे को पता। अरे तो वो टाइम पे रियल मैड्रिड में ऐसा था कि ओजिल वाज एट हिज प्राइम एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग सीजन था। तो वो मैच में भी रामोस ने 1 गोल मारा, रोनाल्डो ने 1 गोल मारा। आई थिंक बाय द 60th मिनट रियल मैड्रिड वर 2-0 अप। उनको 1 गोल चाहिए था टू क्वालिफाई ऑन अवे गोल्स। बेंजेमा ने 3 बहुत ही गंदे सिटर्स मिस किए, बहुत ही गंदे सिटर्स। रोनाल्डो ने भी मिस किए चांसेस। बट वो मैच सेमीफाइनल थी और ऐसा था कि उसके ऑपोजिट एंड में बारसा एंड बायर्न म्यूनिख वर हैविंग देयर सेमीफाइनल। तो एक ऐसा बहुत ही बड़ा चांस था कि देयर बी एन एल क्लासिको का फाइनल। तो वहाँ पे बारसा 7-0 हारा और यहाँ पे लोग 4-3 हार गए। बट ऐसा मैं चाहता था कि ये नहीं हो और हम एक क्लासिको यूसीएल फाइनल देख। वैलिड पॉइंट है कि हाँ, थोड़ा ऐसा अगर एकदम ह्यूमिलिएटिंग मूवमेंट पूछो तो 5-0 बार्सिलोना से जो हारे।
हाँ ये भी मैच हमने साथ में देखा था शायद 5-0 वाला। नहीं ये बहुत ये पहले 2010 वाला है ना। एक अरे रिसेंटली हुआ ना, एक मुरीनी रिसेंटली भी पेप वाला। एक रिसेंटली भी मरीने 5 पेप वाला। एक 5-0 नहीं, रिसेंटली बड़े मार्जिन से एक हुआ था ना, नहीं रिसेंटली ऐसा कोई मैच नहीं हुआ। जिसमें आई थिंक मेसी नहीं खेला था, सुआरेज और पीके ही मारे थे ऐसा हेडर। जनवरी में था। 4-0 हुआ था। 4-0 हुआ था। दिसंबर 19 नहीं वो तो खाली वाला मैच। एक हुआ था जिसमें 4-0 या 5-0 हाँ ऐसा मेसी खेला भी नहीं था, नहीं याद था, है मेरे को। हाँ। 4-0 ये हुआ हम साथ में देखे थे, याद है। एनीवे बहुत थी। मैं अपना वाला बताऊं कि कैसे कौन सा वाला बताओ? हाँ कौन कौन सा वाला? अरे कितने अरे देखो ठीक है, ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। अच्छा हुआ मैं चेंज कर रहा हूँ अभी इसी मोमेंट पे। सबसे हार्ड ब्रेक हो गया। मैं पहले तो 8-2 बोलने वाला था, बट इस साल मेरे को जीतने का उम्मीद नहीं था, तो ह्यूमिलिएशन हुआ। और बहुत रीजंस थे इस बार बारसा को, मतलब अगर एज ए बारसा फैन बोलने कि अरे बोर्ड चूतिया है, टीम अच्छा नहीं है, ऐसा था। बट जेन्युइन हार्ट ब्रेक मोमेंट मेरा एक्चुअली लिवरपूल का सेकंड लेग था, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट लेग में जो हुआ, फर्स्ट लेग में मेसी ने जो 600 गोल ऐसा बाहर से लेके घुसाया, वो मैं ऐसा सुबह उठ के देखता है। उसके बाद जो रिटर्न लेग में हुआ वो मैं मान ही नहीं सकता। मैं और रोहन साथ में देखे थे दोनों मैच, हम नीचे आए थे हमारे हॉस्टल में, मुझे को याद है। बहुत ही खराब वो जो लास्ट में किसने मारा था, कॉर्नर, ट्रेंट आर्नोल्ड का कॉर्नर किक था, ओरिजी ने मारा था वो। आई थिंक बिकॉज उस साल जेन्युइनली लगा था बारसा इतना अच्छा खेल रहा था कि शायद मौका है वापस से। पता है कि वैसा नहीं, पर बारसा लास्ट 4 साल में देखेगा तो शायद बेस्ट था। उस टाइम वो साल जीतने का चांस ज्यादा था, बिकॉज़ डेम्बेले रोमा के दिन भी तुम यही बोले थे। रोमा तो पूरा अनएक्सपेक्टेड था, पता नहीं क्यों। तू सो गया था, तेरे को याद है? तू सो गया था। हम दोनों देख रहे थे, मैं नित्या देख रहे थे। मेरे को याद है मैं सो गया था कि मैं तो जो नाचा था उस दिन, इतनी खुशी मेरे को मैड्रिड के जीतने पे नहीं हुई थी शायद। और मैच हारा। मैं गया अयान के पास, रात के 2-3 बज रहे थे, बोला अयान मैच हार गया। ये उठ के बोला कुछ भी, फोन खोल के देखा, अरे बट मैं सो रहा, अभी बस हो गया। वो तो पहला साल था, फिर तो वापस से हाँ, इतनी बार हुआ है, अब तो आदत हो गई है, क्या बोलूं। बट इस साल जेन्युइनली मैं ये 8-2 हाइलाइट्स भी नहीं देख पाता अभी, मैं देखा ही नहीं उस मैच का कुछ भी। और लिवरपूल का सेकंड लेग भी नहीं देखा हूँ, मैं फर्स्ट लेग ही देखता हूँ अभी तक। तो आई थिंक मेरा वो लिवरपूल का, और तब से उसके बाद से तो लिवरपूल हारा ही नहीं। तो जिस दिन पहले आई थिंक एथलेटिको ने हराया था, उस दिन मैं बहुत नाचा था, जिस दिन एथलेटिको ने अगले साल नॉकआउट 3 बार आ रहा है। किसको? अरे एस्टन विला 4 गोल मारा। अरे वो तो अभी हुआ, वो नहीं बोल रहा मैं। वो चैंपियंस लीग वो के बाद वो चैंपियंस लीग जीत गया ना, वो साल जीत गया। उसके नेक्स्ट ईयर एथलेटिको मैड्रिड ने क्वालिफाई होने से, जो ये कोरोना वायरस होने के पहले हराया, तो मैं बहुत खुश हुआ था। और उसके जस्ट बाद वॉटफोर्ड ने उनका ब्रेक तोड़ दिया लिवरपूल का प्रीमियर लीग में, तब भी मैं बहुत खुश हुआ। बट वही है, दुखद दास्तान यही था मेरा। अब थोड़ा ऐसा जो सीरियस क्वेश्चन नहीं है, अपने जो तीनों बहुत ही अच्छे लेवल के टीम हैं अभी, वर्ल्ड क्लास लेवल के, उनके करंट सिचुएशन के बारे में थोड़ा ऐसा मेरे को बातें करनी। रोहन आप बस आर्सेनल का बोलो, क्योंकि मैड्रिड शायद नित्या बोल ले। अच्छा, लास्ट 1-2 साल या ये साल क्या चल, पहले देखते आर्सेनल है कहाँ पे प्रीमियर लीग में। मैं देखता हूँ 9 पॉइंट है उनके। आर्सेनल इज इन 10 पे है। आर्सेनल इज इन 13th प्लेस करंटली। अरे क्योंकि मैचेस खेला नहीं रहे वो, आज 2-3 मैचेस हुए ना, इसीलिए थोड़ा पीछे गए। क्या लगता है, वरना वो आगे। पहला क्वेश्चन, खुश हो क्या तुम? खुश हो क्या आर्सेनल को लेके अभी? ये साल, ये सीजन नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्सपेक्टेशंस काफी थी। मिकेल आर्टेटा नया मैनेजर है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट पेप गार्डियोला का असिस्टेंट था, तो टैक्टिक्स को कहीं ना कहीं यूज करता है, बट पता नहीं प्ले में इतना परफॉर्मेंस उनका दिखा नहीं, जस्ट बिकॉज मिडफील्ड प्रॉब्लम। आर्सेनल का टाइम पे एक टाइम था जब आर्सेनल के पास सिर्फ मिडफील्ड था और एक स्ट्राइकर, एक अकेला वैन पर्सी संभाल लेता था उस टाइम पे।
मिडफील्ड भरा था, सब भरा था। हमारे पास रोजिस्की था, मिगेल आर्टेटा था, क्या था, सैंटी काजरोला, थियो वॉलकॉट, सब थे लेफ्ट में, मेरे बीच में। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि उनके पास प्ले मेकर नहीं है, मिसूट ओजिल को खिलाना नहीं है, जस्ट बिकॉज ही इज नॉट एट हिज प्राइम। वो ज्यादा प्रेशर गेम नहीं सह पाता है, जल्दी थक जाता है, तो गेम उधर गया उसका। बट कोई ना कोई क्रिएटिव हो रहा है हमारे आर्सेनल के लाइनअप में, तो वो है डेविड लुइस, हमारा गैब्रियल, जो डिफेंडर नया तरीके से कैसे पेनल्टी दे, क्रिएटिविटी निकाल तो रहा है वो। ऐसा मेरे को लगता है कि मिकेल आर्टेटा कुछ नया ला रहा है कि डिफेंडर्स ही हमारे मिडफील्ड संभालेंगे, मिडफील्ड डिफेंस में आएगा, और कुछ तो नया लॉजिक है। क्योंकि स्ट्राइकर स्टैंड समझ नहीं आ रहा, गेम देख के समझ नहीं आता कि हमारे एक तो कीपर जो है बर्न लेनो, मैनुअल नॉयर समझता है खुद को, क्योंकि वो आगे आके वो मार देता है, नहीं तो असिस्ट देने की कोशिश करता है एकदम। और हमारा डिफेंस, मैंने जैसे बोला कि डिफेंस ही बॉल प्रोवाइड कर रहा है और हमारा अटैक तो फिनिश नहीं कर पाता। उनको 40 लाख पासेस करने बारसा जैसे डी में घुस के। तो फिलहाल के लिए नए नए ट्रांसफर देखते भी ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता तो आर्सेनल 4 साल से पहले चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करेगा। किया तो अच्छी बात है, मैं और इम्प्रूवमेंट देखना चाहता हूँ आर्सेनल बड़े टीम्स के साथ कैसा खेलता है, वो मेंटालिटी के साथ। एफए कप तो जीत लिया और ऑब्वियसली लिवरपूल, मैन सिटी के अगेंस्ट खेला, 2 कप अचानक निकाल लिया ना, तो आर्टेटा अच्छा किया। एक्चुअली वो बहुत बेसिक लगता कि इवन मूरिन्यो जैसा, बहुत सारे मैन्यू, बाकी सारे जो प्रोमिनेंट टीम्स है, टॉटनम तो भूल ही जाओ, मैं कंसीडर नहीं करता, लास्ट ट्रॉफी कप जीता, बट 5 सालों में मैंने और डी कप जीता है। हाँ, तो एटलीस्ट ये ट्रॉफी तो एटलीस्ट मैं बोलता हूँ आर्सेनल 3-4 सालों में दूसरे टीम से ज्यादा इम्प्रूव किया है डोमेस्टिक ट्रॉफीज में। नहीं तो लास्ट चेल्सी भी 2017 का यूरोपा हमसे ही जीता, उसके अलावा 5 सालों में कुछ है नहीं, वो लास्ट प्रीमियर जीता था आई गेस। तो देखते हैं डोमेस्टिक में, तो मैं बोलूंगा टॉप 4 तो ये साल नहीं लगता मुझे। आई होप यूरोपा में अगर कुछ, हाँ यूरोपा में अगर स्कोर कर ले ऑफ आर्सेनल इज देख लेंगे थोड़ा। एग्जैक्टली अभी मैं बोलूंगा सिर्फ 4-5 मैचेस हुए और 5 मैचेस के बाद मैं बोल दूंगा, कंक्लूड कर लूंगा कि आर्सेनल क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हाँ, बी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट। हाँ, विंटर के बाद ही पता चलेगा। स्टार्ट अच्छा किया था, 1-2 मैचेस अच्छे खेले थे आर्सेनल, विलियन आके थोड़ा इवन पता है वो जिनसे भी हारा है ना, इवन लिवरपूल और मैन सिटी, एक गोल से बड़े डिफरेंस, एक ही गोल। फिक्सचर्स भी थोड़ा टफ थे, वो भी है, थोड़े कह टफ सकता है। अभी कल का मैच भी यूनाइटेड के साथ थोड़ा टफ है। एनीवे, जाने से पहले ये करंट टीम में तेरा बेस्ट प्लेयर कौन लगता है और कौन ऐसा है जिसको तू होता तो अभी निकाल चुका होता? ओके, जो रेगुलर प्लेइंग 11 में है। अच्छा ओके। मैं पहले वर्स्ट से जाता हूँ जो मेरे को निकालना है। इट वुड बी हमारा स्ट्राइकर अलेक्जेंडर लाकाजेट, जो स्ट्राइकर नहीं, जैसे स्ट्राइकिंग जैसे कर नहीं रहा, जैसी बॉल उसके पास आती गिर जाता है बेचारा, तो कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रहा मेरे को फील्ड पे, तो मैं निकाल देता है क्योंकि उतना पैसा भी आ जाता है आजकल के पास। तो और अगर अभी जो अच्छा खेल रहा है वो फिलहाल मैं बोलूंगा कि लेफ्ट मिड में जो 18 साल का जो प्लेयर है बुकायो साका, वो फिलहाल ज्यादा गेम बनाता है। हाँ, बुकायो साका जो है वो बहुत अच्छा गेम बनाता है। ही इज अ रियली नाइस मिडफील्डर, कम ऐसा लेफ्ट विंग खेलता है, तो फिलहाल के लिए ही इज प्लेइंग रियली गुड। अगर वो उसको स्टार्ट नहीं कराता है आर्टेटा तो प्रोबेबली आर्सेनल हार ही जाता है। 60% ऐसा काउंट पकड़ ले। मैंने पढ़ रहा था कल का मैच जो है ना, शायद आर्टेटा ओबा को सेंटर खेले, ऐसा थोड़े जगह हो सकता है, क्योंकि उसने लाकाजेट को यूरोपा में खिला के देखा, नहीं हो रहा है, लाकाजेट कर ही नहीं पा रहा सेंटर में खिला, तो वो साका लेफ्ट में खेलेगा, स्ट्राइक में अबा रहेगा और राइट में निकोलस पेपे या विलियन खेल रहा है, विलियन आएगा नेक्स्ट कल शायद।
ठीक है, अभी भी तो देखना है। क्या आपका क्या, आपको जाते मैड्रिड को लेके आपका क्या है? प्रीवियस ईयर ला लीगा चैंपियंस हो आप लोग, पर आप खुश हो क्या, ये सवाल है। देख थोड़ा सा ऐसा ही है कि मैड्रिड में बहुत ज़्यादा एक तो एक्सपेक्टेशंस है कि हर साल तुमको चैंपियंस लीग के लिए कंटेस्ट करना है, फॉर ला लीगा, इवन कोपा, अगर तुमको हर साल मतलब एक ट्रेबल की एक्सपेक्टेशन तुम करते हो फ्रॉम अ क्लब लाइक रियल मैड्रिड। तो आई थिंक कोपा रियल मैड्रिड लास्ट जीती थी 2012 या 11 में। ला लीगा पिछले साल जीत की, विच वाज आई थिंक वेरी क्लोज एट वन पॉइंट। बारसा की गलती की वजह से प्रोबेबली जीती। हारा ज्यादा है मैड्रिड, हाँ, मैड्रिड का इस बार पहली बार आई थिंक लास्ट सीजन से they have been more of a defensive team than an attacking team, क्योंकि उनके दोनों सेंटर बैक एंड कैसेमीरो आर वेरी कंपैक्ट एंड बहुत ही टाइट डिफेंडिंग है वो तीनों की। तो विद दिस सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर जो कैसेमीरो आई थिंक इज द मोस्ट ऐसा इम्पोर्टेंट प्लेयर राइट नाउ, तो उसकी वजह से उनका डिफेंस बहुत अच्छा है। तो पर ये जो तुमने बोला आर यू हैप्पी विद द टीम, तो मेरे ख्याल से तो अभी this current Real Madrid team is not fulfilling this as a treble contestant wala thing. So they definitely need new signings, they need attacking signings, क्योंकि defensive I don't think ज़रूरत है। They have young defenders on loan, अच्छे defenders हैं, midfielders also track back pretty well, so they need attacking signings। और कहीं ना कहीं यू नो एट सम पॉइंट ऐसा होता है कि जिदान को जो भी तुम बातों पे क्रिटिसाइज करते हो, मेरे को बहुत ही उसका क्विक रिस्पॉन्स दिखता है इन इम्प्रूविंग इट। जैसे आई ऑलवेज क्रिटिसाइज जिदान ऑन मेकिंग हिज सब्स्टिट्यूशंस टू लेट, 80th मिनट पे 3 सब्स्टिट्यूशन करता था, बट आज भी जैसे वेस्का की मैच में ही मेड अ सब्स्टिट्यूशन इन द 50th मिनट एंड 60th मिनट पे ही गॉट 3 सब्स्टिट्यूट्स। ही इज गिविंग ऐसा more fresh legs, more chances to everybody in the team, so everybody has their morale content, and I think एक तरह से Zidane is not ऐसा relying too much on his compatriots, let's just say कि he's from France, so he's not ऐसा per se favoring everything on Varane, Benzema, Mendy. I think they're proving themselves एक तरह से। Mendy has proven himself on left back, he's playing better defensive duties than Marcelo. Benzema का कोई I think alternative नहीं है, Jovic is not performing, और Varane तो is very crucial, उसका भी कोई option नहीं है, and he's doing pretty well I think except that match in the Champions League। तो जो भी है डेविड लुइस चैनल कर लिया था डेविड लुइस। तो बट यही है कि Real Madrid is good but they're not quite the Real Madrid we have known who won 3 Champions League, ऐसा है फिलहाल। मतलब दिख रहा है फ्लूइडिटी नहीं है जो होना चाहिए। हाँ यार, आई थिंक वो थोड़ी सी उनकी ओल्ड मेंटालिटी है, क्योंकि द मिडफील्ड आई थिंक ऐसा है कि इज गेटिंग प्रिटी ओल्ड, इसको इज ऑफ हिज प्राइम। लूका मॉड्रिच इज इन हिज लास्ट सीजन, टोनी क्रूज इज 31, 32 आई डोंट नो। और ऐसा है कि आई डोंट थिंक पीपल हु हैव नोटिस्ड इट, मतलब जो रियल मैड्रिड के रेगुलरली मैच देखते हैं नहीं, बट सर्जियो रामोस इज आई थिंक वन ऑफ देयर प्ले मेकर्स एज वेल, क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंटर बैक टू जो भी टू द राइट विंगर, टू द लेफ्ट विंगर, विनीसियस हो गया, या टू द राइट बैक कारवाहाल हो गया, व्हाटएवर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ पे मिलिटाओ खेलता है देन क्रूज हैज टू ड्रॉप बैक बहुत ज्यादा, एंड ऐसा हो जाता है कि if Ramos doesn't play they have to play Cruz, so Modric has to be on the bench या Valverde has to be on the bench, क्योंकि Valverde of course covers a lot more ground than Modric and Cruz। वो बहुत दौड़ता है, बहुत साला डिस्टेंस कवर करता है वो। अभी जो बच्चा है दौड़ेगा भी। Do you think कि Ramos का like Ramos पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है टीम? Like even attacking options में भी like Ramos चला जाता है अटैक। जेन्युइनली लगता है कि रामोस पे टीम प्ले मेकिंग के हिसाब से उतना ना भी हो तो मोरल के लिए तो पूरा ही है। हाँ, मतलब आई थिंक रामोस आता है तो बाकी लोग 100% खेलते हैं, दूसरे टाइम पे मोरल ही नहीं होता खेलने। आई थिंक हाँ, इट शुड बी वन ऑफ योर क्वालिफिकेशंस इफ यू आर ऐसा
obviously नेमिंग हिमसेल्फ क्लब का उस कैप्टन, तो ये उस चीज हिसाब तो से तो होना ही चाहिए। 100% ही एंड उसमें तो रामोस इज 10 on 10 एंड उसके जो भी डिफेंसिव इंटरसेप्शंस जो भी है, ऐसा बहुत बार होता है व्हेन आई सी कि द अपोनेंट इज काउंटर अटैकिंग 2v1, सो जो रामोस इज द लास्ट मैन, जो अनलाइकली होता है कि वो पीछे रुक कैसे गया, बट वो इंटरसेप्ट कर लेता है थ्रू बॉल्स। ही इज वेरी गुड विद इंटरसेप्शन, सो इज कैसेमीरो। उसके रेड कार्ड्स बहुत कम हो गए, रेड एंड येलो कार्ड्स। हाँ, रोनाल्डो जब से गया है ना, नोटिस क्या करना, आई थिंक देयर विल बी अ स्टार्ट, यू कैन लुक अप टू इट, कि आई थिंक सिंस ईकर लेफ्ट एंड रामोस बिकेम कैप्टन, तब से बहुत कम हो गए। हाँ, because ऐसा there's this responsibility you have about this very big club. So since Casillas left, Ramos has, I think we can also matured more. True. अब मैं बारसा की बात करता हूँ and I will directly do comparison with Madrid and few things. तो बारसा का अभी genuinely I think worst phase चल रहा है लास्ट के 10 साल से, तो worst phase चल रहा है regarding बोट को लेके इशू, मेसी का जाने का कंट्रोवर्सी, ये सब तो हो रहा है। बारसा का जो की प्रॉब्लम है वो है कि वी हैव वेरी गुड अटैक, लाइक इवन सुआरेज, आफ्टर लीविंग सुआरेज हमारे जो यंग पोटेंशियल्स है बहुत ही अच्छे है। हमारा भी फॉल्ट दो जगह पे है। फर्स्ट है कि हमारा डिफेंस बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट दे हैव दिस टेंडेंसी टू नॉट ड्रॉप बैक। बारसा को इशू है कि बहुत ही हाई लाइन खिलाता है इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि ट्रैक बैक नहीं हो सकता। और जो मेन इशू है कि उनको अभी तक थोड़ा टेंडेंसी है कि मेसी पे डिपेंडेंट रहना, जो कि वैलिड है, तुम्हारे पास इतना बड़ा प्लेयर है, बट सिवाय अंसु फती आई डिडंट सी एनीबडी अटेम्प्टिंग टू प्ले ऑन देयर ओन अदर देन रिलाइंग ऑन मेसी। आई थिंक इसका सोल रीजन, मतलब सोल आउटकम भी यही है कि ग्रीजमैन ठीक से खेल नहीं पा रहा। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हिज पोजीशन, ही इज नॉट हैप्पी विद ग्रीजमैन का, एंड करंटली तो लाइक इवन मेसी जो सेंटर से खेल रहा है वो भी उसको नहीं जम रहा है, सो दैट इज अनदर रीजन। एंड उसका फॉर्म भी खराब है, मेसी इज जेन्युइनली नॉट इन फॉर्म राइट नाउ, इट लुक्स लाइक दैट। और जो की डिफरेंस है मैं बोलूँगा, इफ यू सी टुडेज गेम, जो मैड्रिड का गेम है, जहाँ पे इट वाज वेरी फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स और सो जब 0-0 था, इट वाज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो लोग बारसा के अगेंस्ट करते हैं कि अपने डिफेंस में बहुत लोग घुसा देते ताकि मार ही ना पाए। बट दैट टाइम द की मोर थिंग दैट मैड्रिड डिड टुडे वाज टू अटैक एंड ट्राई टू अटेम्प्ट शॉट्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स, फाइंडिंग अ मोमेंट टू शूट। बारसा को मैंने लास्ट 2 साल में कभी नहीं देखा है बाहर से शॉट अटेम्प्ट लेने का। एक बंदा लेता था, रैकिटिच, जो गोल भी मारता था, उसके बाद से आई सी नोबडी अटेम्प्टिंग अ शॉट आउटसाइड द बॉक्स। अब से बहुत अनफेवरेबल कंडीशंस में, लेकिन लाइक सुआरेज काम करता था, इंटर में मारा था, इंटर के अगेंस्ट वो करता था। सुआरेज का भी थोड़ा टेंडेंसी था, जब देख कोई नहीं है मैं मार देता हूँ, बट पुटिंग प्रेशर ऑन द डिफेंस बाय अटेम्प्टिंग शॉट्स फ्रॉम द ओपन, उनका हमेशा, इवन दो दे फाइंड अ बॉल ओपन, दे विल गो इन एंड प्ले। Now Messi can do that, and Messi attracts fouls inside the box because of that, because he has that ability. जो लोगों ने, Ansu Fati also has that, but I feel few people can genuinely do that. And I think और एक जो problem है, basically सब में ही problem है, midfield में I think Busquets का हो गया, थोड़ा अभी छोड़ देते हैं उसको, उसको creativity के लिए रखते हैं टीम में, but he cannot shield the ball also right now, उसका ऐसा हालत है। मतलब उसको थोड़ा कोई फिजिकल कुछ भी करे तो लाइक ही गिव्स द बॉल अप द मोस्ट, आई फील, इन द मिडफील्ड, एंड दैट्स वेयर द अटैक स्टार्ट्स। मेरा होगा कि प्ले कोटिन्यो, पियानिच एंड फ्रैंकी इफ यू हैव दैट ऑप्शन, बिकॉज क्यों नहीं करना है। एंड मेरा वही गो टू सोल्यूशन होगा कि मेसी को वापस राइट से खिलाओ थोड़े मैचेस के लिए। पहले तो मत खिलाओ, 3 मैचेस मत खिलाओ उसको, मैं बोलूँगा थोड़ा सा रेस्ट दो इंसान को। मैं आई थिंक तुम लोग को बोला भी था कि लास्ट 5 साल के स्टैट में मेसी आउटफील्ड प्लेयर के जगह पे ही इज द मोस्ट टाइम ही हैज स्पेंट एज अ प्लेयर, वो है। सेकंड आउटफील्ड प्लेयर इज काइल वॉकर, और मेसी और काइल वॉकर के बीच में डिफरेंस 1 सीजन का है ऑलमोस्ट, टाइम स्पेंड ऑन द पिच का। तो ये लाइक बहुत ही अंडरमाइंड स्टैट है मेसी के बारे में कि वो ज्यादा इंज्योर वगैरह नहीं होता है, इसलिए वो होता है, और गेम टाइम बहुत लेता है। बट आई थिंक ही इज लाइक 33, तो उसको थोड़ा टाइम ऑफ दो। एंड आई थिंक जब फॉर्म नहीं है, क्यों खिलाना है हर मैच का 90 मिनट, ये मेरे को समझ नहीं आता।
तुम्हारे पास बहुत ऑप्शन है, पेड्री है, ट्रिंकाओ है, उनको खिलाओ जो जेन्युइनली लाइक दे कैन प्ले. एंड व्हेन मेसी डजंट प्ले ट्रूली ऐसा होता है कभी कभी कि दे फाइंड देयर ओन ग्रूव. और एक है, आई डोंट थिंक के डेम्बेले इज फिट फॉर बार्सिलोना बिकॉज उसका डिसीजन मेकिंग बहुत खराब है. लाइक बहुत ही ज्यादा खराब है. लाइक उसके मेरे को बहुत ही सिमिलर लगते हैं डेम्बेले और विनीसियस. सेम एग्जैक्ट. बट आई फील आर्सेनल में भी एक है निकोलस पेपे, थोड़ा बेटर है. डेम्बेले का थोड़ा बेटर है. विनीसियस का आई थिंक ये थोड़ा बेटर है. ड्रिबलिंग थोड़ा ज्यादा बेटर है इससे. डेम्बेले विनीसियस का फिनिशिंग बहुत खराब है. डेम्बेले कैन स्कोर मेरे को लगता है. डेम्बेले कैन स्कोर बट ही कांट पास टू सेव हिज लाइफ. He can't pass to the right player at the right moment. I don't know. कभी भी दो सिचुएशन होंगे वो हमेशा गलत ऑप्शन पिक करके बॉल को बाहर करने लगता है. बहुत अनोइंग है. एंड जो दूसरा प्रॉब्लम है जो है कि आंतोइन ग्रीजमैन जो इतना बड़ा प्लेयर है, लाइक बिफोर कमिंग टू बार्सा एंड बिफोर वर्ल्ड कप में ऑल्सो फॉर्म में नहीं था, बट यू कुड काउंट हिम इन टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम पे इजीली. उससे अभी लाइक तुम को बॉल ही नहीं मिल रहा है, तुम्हारे जगह कोई बच्चा खेल रहा है आके, ऐसा हालत हो गया है. solely because I think the choice was wrong to bring Griezmann. I think it was the worst decision. I don't get, obviously बारसा चाहेगा वो क्यों आया मेरे को नहीं समझा. I thought that maybe I can play in a different position, but नहीं हो रहा है. And I think that is the sole reason. बारसा का जो बेस्ट प्लेयर अभी खेल रहा है current form is अंसु फती, बहुत ही ऑब्वियस है. एंड मेसी का भी नहीं है फॉर्म. एंड वन प्लेयर जो उसको मैं बोलूँगा कि अभी निकल लौड़े वो यही होगा बुस्केट्स को बिकॉज आई थिंक पीके भी थोड़ा बेटर हो गया है. पीके को हम इतना गाली देते हैं, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो गया है. बट बारसा उसको खिलाते भी नहीं है अभी, थोड़ा उसको भी रेस्ट देते हैं. वही है. कौन बच्चे पीके आई थिंक इज आल्सो अभी प्रीटी ओल्ड. पीके इज प्रीटी ओल्ड. वही बोल रहा हूँ ना कि बारसा का एक टेंडेंसी है हाई लाइन खेलने का, पर तुम ट्रैक बैक भी करो ना, वो ट्रैक बैक नहीं होता उससे. नहीं होता. आई थिंक ऐसा बारसा का जो राइट साइड का डिफेंस है, इनका जो भी राइट बैक है, राइट सेंटर बैक है, वो थोड़े नए प्लेयर्स हैं. बाकी इधर पीके और जॉर्डी अल्बा थोड़े एक्सपीरियंस ओल्ड. जॉर्डी अल्बा का भी थोड़ा टच गया है लास्ट के आई थिंक 6-7 महीनों में. आई थिंक बस अंडर परफॉर्म किया. सेमेडो को बेचना वाज अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है. सेमेडो को पता नहीं क्यों बेचा. मेरा तो लगता है बस फाइनेंशियल मोटिव था और कुछ भी नहीं था. अच्छा, प्योरली फाइनेंशियल. बिकॉज वो जो अटैकिंग फुलबैक का जो है ना, ही इज परफेक्ट फॉर दैट, बट उसको बेच दिया. रोबर्टो आई थिंक मिडफील्ड में बेटर खेलता है राइट बैक से अभी तो. बट दे हैव गॉटन सर्जियो डेस्ट जो वन ऑफ द शाइनिंग स्टार है. प्रोडिजी टाइप लग रहा है, हो सकता है, अभी कुछ नहीं बोलूंगा. हमें एल क्लासिको अच्छा खेला एंड उसका मतलब ही कैन प्ले बोथ साइड्स, लेफ्ट बैक राइट बैक. ही कैन प्ले राइट बैक, उसका ज्यादा प्रोमिनेंट है, बट लेफ्ट बैक आल्सो ही कैन. लाइक इंस्टेड उसका फर्स्ट मैच वाज in place of Jordi Alba and he was playing राइट बैक में. तो मैड्रिड की मतलब बहुत ही ऐसा डिप्रेशन में है राइट बैक पोजीशन पे. हाँ, मैड्रिड का तो कारवाल इंजर्ड है. एक बंदे कारवाल इंजर्ड है, ऑड्रियोजोला इंजर्ड है, नाचो इज नॉट प्लेइंग, अक्रफ हकीमी को बेच नाचो को हार्ट डिजीज है, ऐसा कुछ पता नहीं है. बट जो भी, आई वुड नॉट प्रेफर Nacho to ever start a Real Madrid game. He's just पता नहीं not good enough. और ये बहुत ही ऐसा loyal type का लगता है. वो ही changes position whenever needed. He's an important member but not someone you start with. Got it. मुझे भी वही लगता है. तो बारसा मैड्रिड दोनों का राइट बैक का इशू, आई थिंक बारसा का तो थोड़ा लग रहा है सॉल्व हुआ है, बट देखते क्या होता है. इसका तो है लाइक हकीमी को बेचना मेरे को बहुत ही वियर्ड लगा था कि वो पोजीशन में इट लुक्स लाइक के होल है बहुत बड़ा. स्टिल यू सोल्ड द ओनली प्लेयर. पता है कि व्हेन आई मीन नोबडी कुड सी इट कमिंग कि कारवाहाल और ऑड्रियोजोला हु हैड आई थिंक अ सक्सेसफुल सीजन एट बायर्न इससे पहले, ही केम बैक फ्रॉम सीजन लॉन्ग लोन.
he was doing good and he agreed to be a sporadic player कि Carvajal will be the first choice and Odriozola can play if he doesn't, but दोनों injured हो गए थे, किसको पता था. तो लास्ट के 2 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन तो एक आंसर सबका है कि according to you who is the current best young player? Anybody who you think is the best young player according to you? Rohan, tera young as in like what age do you think young होता है? 21 22 is young. देख या 20 के नीचे ही चाहिए. जो ये साल ये जो सीजन है, they're shining this season for the first time. I think Phil Foden is doing really well. Has good potential. So he's been 1-2 साल से वो like ये सीजन अभी स्टार्ट करने लगा है. केविन डी ब्रुयने अभी इंजर्ड था पूरे टाइम, तो वो ही मिडफील्ड संभाल रहा था बीच बीच में आके, तो 2 असिस्ट भी दिए. I think he has potential to be the best by the end of this season. अच्छा, फिल फोर्डन ऐसा डीवाई पाटिल में खेलने आया था हम लोग जब कॉलेज में गए थे पहली बार 2017 में, तो वर्ल्ड कप था ना, जेडन सैंचो वगैरह भी. कौन सा अंडर 18 वर्ल्ड कप था कि कौन सा 21 17 होता है ना, ये 18 पता नहीं, वही वाला 17 था. 17 था तब आया था. हाँ, नेरुल में. नित्य आपका क्या है मेरे बेस्ट को ब्रो लगता है जेसी लिंगार्ड. जेसी लिंगार्ड प्रीमियर जैसे कोई नहीं. प्रीमियर लीग खत्म किया लास्ट गोल मार के लास्ट ईयर. अरे पिछले 3 साल से ये ऐसा वो प्रोडिजी बन के रहा. अरे he is around 27 now, जेसी लिंगार्ड. अरे फिर भी ऐसा अपकमिंग प्लेयर है. अरे डेली अली भी तो है. मुझे पता है डेली अली और जेसी लिंगार्ड का शक्ल सिमिलरली लगता है कभी. है थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी तो सेम हो गया. डेली अली निकल रहा है बोल दिया ना. अरे पहले ऐसा ऑल और नथिंग में जोसे बहुत प्रेफर करता था बेचारे को. डेली अली वो बोल रहा है कि उसको पहले से ही पसंद नहीं था, वो बस दिखाने के लिए बोल दिया है कि एलेक्स फर्गुसन ने बोला है ओनली वन एडवाइस बाद डेली अली. कौन है? एम्बाप्पे बोल सकते हैं. एम्बाप्पे का तो वर्ल्ड कप जीत चुका है, वो अभी यंग में कंसीडर ही नहीं कर रहा मैं. हाँ बे 21 हुआ है. सही में लगता नहीं है ही इज वही 21. वो ऐसा लगता है साला अकॉम्प्लिश्ड प्लेयर है. बट सही में टू आंसर इट सीरियसली, मेरे को आई थिंक आई एम गोना मेक अयान हैप्पी एंड से अंसु फाती बोलेगा. हाँ क्योंकि यार जो भी है ऐसा it takes a big person to acknowledge your rivals if they're doing good. तुम ऐसा स्पेन का प्लेयर हिसाब से बोल लो, बारसा का बंदा नहीं, बट जो भी ऐसा आई थिंक बहुत बड़ी बात है टू ऐसा स्टार्ट स्कोरिंग सो मच एट 17 years old, वो भी ऐसे ला लीगा जैसे कॉम्पिटिटिव लीग में अगेंस्ट बिग टीम्स. रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी स्कोर किया है उसने, स्कोरिंग इन द चैंपियंस लीग. ही हैज मेड हिज स्पॉट इन द स्टार्टिंग 11, तो बहुत बड़ी बात है. आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी द वन. आई थिंक मेरा भी सेम है, इट्स अंसु फाती, बट आई थिंक क्लोज लाइक बिफोर ला लीगा स्टार्टेड. आई थिंक लास्ट सीजन की अगर बात भी करो मिला के, आई थिंक अर्लिंग हालैंड इज समथिंग एल्स. वो कुछ अलग ही कर रहा था. और यूनाइटेड जो लात मारा था उसको कि नहीं लेंगे, वी आर गोइंग फॉर जेडन सैंचो या फिर कुछ, जो लास्ट ईयर से बात चल रही है. नहीं, आई डोंट थिंक यूनाइटेड इज इन अ प्लेस टू लात मारो प्लेयर्स. बट हुआ था लाइक ओके चलो टीम ने नहीं किया होगा ऑफिशियली कि नहीं चाहिए, बट आई हर्ड फ्रॉम सो मेनी फैंस कि हमको हालैंड नहीं चाहिए. बहुत वो यूनाइटेड फैंस बोलते हैं, ऐसा प्लेयर मना कर देता है तो वो खुद ही बोलते हैं हम कोई नहीं चाहिए. नहीं यार तब मतलब जस्ट रूमर आया था कि शायद यूनाइटेड आर मेकिंग एन ऑफर और समथिंग ऐसा. तब से यार नहीं चाहिए. ठीक है, तब हमको भी नहीं पता था. फिर जो वो इंसान ऐसा हर मैच में 3 गोल मांगने लगा, तब तो मतलब अलग ही लेवल का. नहीं बट हाँ सही में यू आर राइट, ऐसा वन ऑफ द बेस्ट यंग स्ट्राइकर्स एर्लिंग हालैंड. और ये भी तो सोच, उन्होंने हालैंड की जगह किसको खरीदा उस जगह? यूनाइटेड ने इगालो
हाँ इगालो एक सीजन बहुत अच्छा खेला था, पता है, वो प्रीमियर लीग में। यूरोपा खेला ना, यूरोपा के लास्ट यूरोपा में दो अच्छा तीन खेला मैचेस था। मारा वो। हाँ वैसा खेल नहीं रहा नहीं, था। यूनाइटेड से पहले भी आई थिंक वो जो पहले टीम में था, आई थिंक इट वाज वॉटफोर्ड जो टीम में था वो प्रीमियर लीग में कुछ सीजन पहले। एंड इगालो वाज वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर गोल्डन बूट, बहुत गोल मार रहा था वो। फिर वो चाइना चला गया anyway। हाँ हाँ बट मेरा भी वही है, आई थिंक अंशु फती, बिकॉज दिख रहा है कि कुछ अलग है, बिकॉज ही हैज एवरीथिंग, ही इज ड्रिबलिंग वेल एंड ही इज फिनिशिंग वेल एज वेल, जो लाइक बहुत ही आइदर तो जैसे विनीसियस है हमारा एक एग्जांपल, दूसरा है यूनाइटेड में डैन जेम्स जो बस भागता है, वो बस बॉल लेके भागना जानता है, उसको ना पासिंग आता है, क्रॉसिंग आता है, शॉट लेना आता है। तो उस हिसाब से आई थिंक उसका सेंसिबल है, लाइक नेचुरली क्रिएटिव है, सो आई थिंक ही इज ओके, बट आई वुड आल्सो से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अंशु फटी खेल रहा है अच्छा, ही इज 18 टुडे, ओके, बट क्या होता है ना कि तुमने लास्ट मैच देखा जिसमें अंशु फटी का लास्ट मिनट में ही हैड द बॉल, एकदम कीपर के सामने 1-on-1 था, he did not score, he tried to pass it to Braithwaite। yes yes, पर कहीं ना कहीं वो एक मेंटालिटी रहता है कि वो भी शायद वो कंफ्यूजन में जी रहा है, तो अभी शायद वो अभी अच्छा खेल रहा है, बाद में सेम डेम्बेले जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा डर लगता है उसको देख। आई थिंक बारसा का रिसर्जेंस अभी मेसी जाने के बाद ही होगा, मुझे लगता है उनके दिमाग से मेसी को निकालना है, वही जाके उनका होगा, क्योंकि मेसी अभी ऐसा होता है ना, हम सोचते हैं कि बोलते हैं कि प्लेयर कम कोच ऐसा है, मेसी अभी ऐसा प्लेयर कम चेयरमैन लग रहा है बारसा का, ऐसा ऐसे लेवल पे ऑपरेट कर बोल सकते हैं। तो उस चीज को जब तक नहीं हटाते तब तक आई डोंट थिंक होगा। लाइक मैं जेन्युइनली बहुत सैड था न्यूज सुन के कि मेसी जाने वाला है, बट फिर मैं बहुत जल्दी लाइक आई मेड अप माय माइंड कि ठीक है चलेगा, प्रीमियर लीग में प्रोबेबली ही विल फाइंड अ न्यू ग्राउंड एंड बारसा के लिए भी अच्छा है, बट वो नहीं हुआ वापस से, अभी तो लग रहा है वापस मेसी रहने वाला है। सो अनलेस मेसी somehow does a Ballon d'Or winning performance again to lift the team up, ऐसा कुछ I don't think like मेसी को इंक्लूड करके बारसा ग्लोरी मिलेगा बारसा at this point। ये मेसी का गलती नहीं है, बारसा का गलती नहीं है, बस दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, बिकॉज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया एंड वही बस निकालना पड़ेगा। आई थिंक इट्स बेस्ट। एनीवे माँ चुता है हमको क्या है, लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रेडिक्शन टाइम। हम फेवरेट दो प्रेडिक्शन नहीं, टॉप 4 बोलेंगे पीएल का, और टॉप 2 पता नहीं लालीगा का बोले कि भी नहीं बोले, सबको पता है, पोजीशन बोलते हैं 1 पे 2 पे। एनीवे मोस्टली ये करते हैं, चैंपियंस लीग का सोचते हैं, एंड हमने रोनाल्डो की बात तो की ही नहीं, हमने मतलब सेरिया ये हम देखते नहीं है ज्यादा, पर थोड़ा ये जो लास्ट यूसीएल का जो राउंड हुआ उसके बारे में थोड़ा करते हैं, कि हम तीनों ने वॉइस कॉल पे देखा था, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैच हुआ यूवे वर्सेस बारसा का। काफी ट्रेजिक। एक आदमी ने बोला था देयर इज 2 थिंग्स ऑन द ऑफसाइड, गॉड सौरव गांगुली, गॉड एंड सौरव गांगुली, अभी तीसरा वाला अल्वेरो मोराता भी जुड़ चुका है, बट वही था कि आई थिंक वही है सेम लाइक यू, आई थिंक ये बहुत और भी ज्यादा डिपेंडेंट लगता है यूवे लाइक रोनाल्डो पे, लगता है क्या तुम लोगों को? लाइक अगर तुमको बोले मेसी बारसा पे जितना डिपेंडेंट होके खेलता है और रोनाल्डो जितना यूवे पे है, एट दिस पॉइंट क्या लगता है कौन ज्यादा डिपेंडेंट है सोलो पे? रोनाल्डो अगर नहीं होता शायद लास्ट सीजन तक, तो मतलब उनमें स्कोर करने वाला वो कहीं ना कहीं, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर रोनाल्डो नहीं होता तो शायद यूवे कुछ जीत भी नहीं पाता था। अभी रोनाल्डो नहीं है तो थोड़ा असर तो पड़ रहा है यूवे पे, जम नहीं रहा उनको स्ट्राइक करने को। अल्वारो मोराटा कर रहा है, लेकिन ऑफसाइड से कौन गोल मारता है यार? वो तो एक मैच है चलो, पर बाकी सीजन में भी तो देखना। नित्या क्या लगता है तेरे को? नहीं यार, आई डिसएग्री। मेरे को नहीं लगता कि the thing Messi does on the pitch
वो दैट नेचुरली मेक्स हिम ऐसा अ डिपेंडेबल पर्सन कि हर बॉल हैज टू गो थ्रू मेसी. दैट इज नॉट द केस विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ऐसा बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि ऐसा रोनाल्डो जस्ट नीड्स वन मोमेंट टू क्रिएट अ डिफरेंस. मेसी नीड्स टू ऐसा कंट्रोल द होल गेम. तो एक वैसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर रोनाल्डो नहीं होता तो देयर वुड हैव बीन समबडी एल्स. बट रोनाल्डो इज जस्ट मच बेटर एट व्हाट ही डज. हाँ, बट ऐसा है कि जैसे पहले भी था कि हिगुएन मंजूकिच थे और अभी ऑलमोस्ट एडिन जेको आ गया था. तो ऐसा नहीं है कि यूए ऐसा है कि थोड़ा बहुत वो नेचुरली दे टेंड टू डिपेंड ऑन रोनाल्डो बिकॉज ही इज सच अ ह्यूज प्लेयर. बट ऐसा नहीं, ही इज नॉट the Messi of his team कि everything has to go through him. वैसा है कि उसको तुम ऐसा आधा सेकेंड दो, वो स्पेस निकाल के तुमको गोल मार देगा. बट ये है कि मेसी हैज टू कंट्रोल एवरीथिंग इन बार्सिलोना. बट मैं उस साइड से नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था इन द सेंस के मेसी बारसा के टीम का मोरल डिसाइड नहीं करता. वो प्ले मेकिंग पे फोकस कर रहा है. जैसे रैमोस इज वेरी मच इन चार्ज ऑफ द मोरल एज वेल. I feel similarly Ronaldo is very much in charge of morale as well as his excellence playmaking. मतलब वो जो moments create करके गोल मारता है वो तो है ही, but I feel थोड़ा morale drop भी होता है बहुत. I think लगता है क्या? देख, ऐसा है कि यूए के अटैक में अभी है कौन, वो एक उनका नंबर 44 है कुलिसकेश की, जो बहुत ही घटिया खेल रहा है अकॉर्डिंग टू मी. There is Weston McKennie who hasn't performed yet abhi tak, but they say he's good potential. They're playing Cuadrado at right back, Alexandro who is getting pretty good. तो जो उनका overlap wing से expect करते हैं, you expect Juventus to overlap the wings because उनके midfielders are distributors. Aaron Ramsey is a distributor. Dybala is very good at through balls. So you expect the wing backs to ऐसा overlap it and cross to whatever Ronaldo is there और जो भी उनका forward रहेगा वो time. They do not do that. ऐसा हो रहा है. तो यूवेंटस में रोनाल्डो एक तरह से he has to create something out of nothing. According to me बहुत ही घटिया टीम है यूवेंटस. बट कहीं ना कहीं उनके मोरल बूस्ट करने में भी रोनाल्डो इज व्हाट 35, तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स देयर. जो भी है उसका से है, देयर इज सम से. He proves his point now. रोनाल्डो का वो जो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो सेकंड लेग था जिता दिया, वो जो चैंपियंस लीग वाला मैच था, वो उसके बाद भी पूरी टीम में एक आ जाता है ना कि व्हेन रोनाल्डो इज देयर. इसीलिए मैं रैमोस से कंपेयर किया बिकॉज लास्ट मोमेंट तक रोनाल्डो नहीं छोड़ता है गेम को, जब बहुत विविडली दिखता है कि बाकी लोग छोड़ चुके हैं. अच्छा ठीक है. तो यही है. और पता नहीं, मैंने एक चीज बहुत ऐसा इस साल नोटिस किया, बहुत बोर हो रहा था कि नित्या ने जो बोला ना, प्लेइंग स्टाइल्स ऑब्वियसली मेसी रोनाल्डो का अलग है, बट कोई बंदा अगर वीडियो नहीं भी देख रहा हो, अगर सिर्फ ऑडियो सुन रहा हो दोनों के हाइलाइट्स का, तो कमेंटेटर्स का आवाज सुन के पता लगता है कौन कैसा प्लेयर है. बिकॉज रोनाल्डो का जब गोल होता है, इट्स बेसिकली कि एक क्लिप चालू होता है एंड एक जोर से रोनाल्डो बोल के कोई चिल्लाता है और वो गोल होता है. मेसी का तू हाइलाइट्स कभी भी सुनेगा, इट्स लाइक मेसी हैज द बॉल, मेसी 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 मेसी, मतलब तू फील कर सकता है कि वो बॉल लेके जा रहा है. वो ऑडियो से डिफरेंस समझता है. फिर ऑब्वियसली एंड में गोल तो सेम सेलिब्रेशन होता है दोनों. बट ये मैं नोटिस किया कि दोनों का स्टाइल ऑफ प्ले बस ऑडियो सुन के तुम समझ सकते हो कि ये बंदा 6 लोग कटाया और एक अमेजिंग कहीं से गोल निकाला है, इसलिए इतना सेलिब्रेशन. एनीवे, तो प्रेडिक्शन रोहन, तेरा क्या प्रेडिक्शन है? टॉप 4 बताओ पहले पीएल का, क्या लगता है? टॉप 4 लिवरपूल, एवर्टन, टॉटनम, ओके, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. कौन बोला? सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो एवर्टन, फिर क्या बोला तू? नहीं, ऐसा मेंशनड इट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ना. हाँ, लिवरपूल, एवर्टन, फिर क्या बोला मैं? टॉटनम. हाँ, टॉटनम, स्पर्स और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड. ओके,
और ला लीगा में क्या लग रहा है कौन जीतेगा? अभी चलो एक नाम बोल दे, मैड्रिड बोल दे। मैड्रिड ही जीतेगा। एंड चैंपियंस लीग, पूछने की बात नहीं है। चैंपियंस लीग क्या लग रहा है? ये तो बहुत अर्ली है बट अब कर ले रहा है प्रेडिक्शन चैंपियंस लीग। अच्छा चैंपियंस लीग बारसा बोलूं? बोल देना, मस्त मस्त बोल। परिचित। Anyway, नित्या तेरा क्या प्रीमियर लीग? तू फॉलो करता है ना प्रीमियर लीग? हाँ हाँ, तो मेरा प्रेडिक्शन इज लिवरपूल फर्स्ट चैंपियन, सेकंड आई एम गोना गो चेल्सी, ओके। थर्ड इधर नहीं है, थर्ड कौन? थर्ड मैनचेस्टर सिटी और फोर्थ स्पर्स। चलो मेरा बहुत ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि मुझको लगता है, मैं बस स्टैट्स पे जा रहा हूँ कि मोरिनियो अपने हर सेकंड सीजन में कप लाया है, तो मैं उस हिसाब से, मुझको पता नहीं क्यों, बिकॉज लिवरपूल का डिफेंस नहीं है अभी, वैन डाइक बाहर है, बाकी सारे इंजर्ड है, इवन दो दे आर प्लेइंग रियली वेल, बट मेरे को लगता है, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल है, मेरा फर्स्ट चॉइस इज टॉटनहम। मुझको लगता है ये कुछ अलग होने वाला है। सेकंड आई विल प्लेस लिवरपूल, थर्ड इज माय टीम, फेवरेट टीम जो मैं चाहता हूँ इस साल जीते, तो मैं सबसे ज्यादा कहूंगा व्हिच इज लीड्स, एंड फोर्थ आई थिंक विल बी सिटी, एंड सिटी फोर्थ होगा, एंड ग्वार्डियोला को निकाल देंगे मेरे को लगता है। लास्ट है उसका, वैसे भी लास्ट सीजन है। नित्या तू ये नहीं बोल ला लीगा और ये यूसीएल? ला लीगा इस बार मेरे को लगता है इट विल बी एथलेटिको मैड्रिड। हाँ लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था, मैं भी आई थिंक। एंड यूसीएल क्या लगता है? अभी तो बहुत अर्ली है, यूसीएल इस बार पता नहीं, माय गट सेज कि इट विल बी सम टीम वी ऑल डू नॉट एक्सपेक्ट, नॉट अ बायर्न म्यूनिख, नॉट अ रियल मैड्रिड, नॉट अ बार्सिलोना, लेप्जिग, लियोन और अटलांटा जैसा कोई जीतेगा, कोई ऐसा। डोंट यू थिंक बायर्न का परफॉर्मेंस लाइक अभी तक खत्म ही नहीं हो, हारा नहीं है वो, खत्म 10 मैचेस अभी तक अनबीटन है वो, चैंपियन सेविया ले लिया नहीं है, बस ये पता नहीं, एक ऐसा मेरे को अजीब सा कर्स लगता है फॉर बायर्न म्यूनिख कि एक बार वो चैंपियंस लीग जीते तो थोड़े सीजन के लिए वो इतने अच्छे फॉर्म में नहीं रहेंगे, बट देखते। ठीक है, मेरा आई थिंक सेम है, आई वांट बारसा टू विन, बट मुझे भी लग रहा है कि वापस से रियल जीतेगा, पता नहीं क्यों लग रहा है। एंड मेरा यूसीएल पिक इस साल आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रीमियर लीग टीम, आई थिंक मुझको लग रहा है, आई फील लिवरपूल जीतेगा, पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है, आई थिंक तब तक ठीक हो जाएंगे उनके प्लेयर्स, ऐसा लग रहा है, बहुत दूर का हंच है, पता नहीं, हो सकता है बारसा जीत जाए, मैं तो बोल ही नहीं सकता। मतलब तू बोल रहा है लिवरपूल टॉप 4 में नहीं आएगी बट यूसीएल जीतेगी? अरे टॉप 4 में आया ना, मेरा सेकंड पे आया ना, सेकंड लिवरपूल बोला, सेकंड लिवरपूल, टॉटनहम, लिवरपूल, लीड्स सिटी बोला, तो एवर्टन नहीं है? अरे मैं एवर्टन नहीं डाला, अच्छा नहीं एवर्टन नहीं है, मुझे लगता है फिफ्थ एवर्टन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मेरे को लगता है डीसी का फॉर्म गिरेगा। हाँ, मेरा मैन सिटी, मुझे ऐसा लगता है कि अभी डाउनफॉल होगा शायद, मेरे को उल्टा लग रहा है, अभी मेरे को लग रहा है अभी डाउनफॉल चल रहा है, अभी अच्छा आएगा, आई कांट एक्सपेक्ट। और मैन्यू का है ना ऐसा गट, ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि यार मैन्यू भागेगा, मैं पता नहीं रे, लेकिन ऐसा जादू है वे उनमें, कभी ना कभी ऐसा आ ही जाते, कभी कल का मैच तो मैं एक्सपेक्ट देख लो थोड़ा, वो अनरियलिस्टिक नहीं सोच रहा, हम क्यों कल गोल मारेगा ना, मैं इसको ऐसा फिर मैं डालेगा फोर्थ, फिर आर्सेनल ही आएगा, मैन्यू जाने दो। चलो फिर यही था, इतना ही था। थैंक्स फॉर जॉइनिंग बोथ ऑफ यू। लास्ट जो है, आई हैव अ सेगमेंट वेयर आई आस्क पीपल टू रिकमेंड समथिंग, बिकॉज ये फुटबॉल एडिशन है, बेटर होगा इफ यू सजेस्ट एनीथिंग फुटबॉल रिलेटेड दैट यू वांट टू सजेस्ट। I guess TV series would be a really nice idea, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री काफी हिट हुआ था ऑल और नथिंग का, तो आई गेस उससे रिलेटेड सीरीज बेटर है। मूवी तो यार
You are he suggesting had movies. all or nothing. Yeah, but it's like a documentary type, ना. वो डॉक्यू सीरीज बोलते हैं उसको. हाँ, it's a docu series ही बोलते हैं. Like I want something ऐसा. कौन सा वाला all or nothing? सिटी वाला, टॉटनहम वाला? मुझे पता नहीं क्यों सिटी वाला ज्यादा अच्छा लगा टॉटनहम से. टॉटनहम में बहुत बोर हो गया. ओके. नित्या और है कुछ या वही है? नहीं वही है. मुझे बस ऐसा जैसे जो गोल मूवी आई थी ना सैंटियागो जो बन रही थी न्यूकासल से. मुझको जॉन अब्राहम लगा तू जब बोला. अरे मेरा वो रिकमेंडेशन. अरे नित्य तेरा क्या है? जॉन अब्राहम वाला? नहीं, एक्चुअली मेरा रिकमेंडेशन वाज two things. वही एक्चुअली गोल की सेकंड मूवी फॉर ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, जिससे ऐसे यू गेट अ जिस्ट ऑफ हाँ जो भी गैलेक्टिको एरा फर्नांडिनो पेरेस था वो टाइम पे, उनके जो भी स्टार प्लेयर्स, स्टार स्टडेड लाइनअप्स थी, उसका एक बहुत अच्छा आइडिया आता है. उसमें रोहन का फेवरेट मोमेंट भी है, थियरी ऑनरी का गोल अगेंस्ट रियल मैड्रिड. So I think that is a very good movie in general, not just football wise. It's a very good movie. ऐसा बहुत कम होता है you see football stars in movies acting. Yes. So I think that is a good pick. And this, I think it's a documentary about I think the Leeds United documentary. Yes, that was pretty good as well. Yes, that was Take Us Home was very good. Dull Until I Die, good documentary. It's on Netflix. Netflix पे मेरे को अचानक एक बारसा का डॉक्यूमेंट्री मिला. Netflix पे बहुत छुपे डॉक्यूमेंट्री से ग्रीजमैन का एक है, बेंजिमा का एक है. I don't know क्यों. ग्रीजमैन ने निकाला था ना एथलेटिको में कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, फिर अगले सीजन का ले गया. वैसा ही था. तो ये ग्रीन स्ट्रीट हूलिगन्स अच्छा है. वो मैं वही बोल तू नहीं बोला था. मैं नहीं बोला. ग्रीन स्ट्रीट हूलिगन्स बोल के है जिसमें एलाइजा वुड है, हूलिगनिज्म पे है. इट्स गुड. और देखना है तो नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश गेम बोल के एक डॉक्यूमेंट्री टाइप है, एक सीरीज है. इट्स अबाउट फुटबॉल का इंसेप्शन, 18th 19th सेंचुरी का है ना वो वाला. और है और क्या सजेस्ट करूं? पहले का बायोपिक देखो, बेस्ट था, बहुत ही अच्छा. पहले का बायोपिक ग्रेट, बहुत ही अच्छा. एंड फुटबॉल रिलेटेड और क्या है? मैं टेक अस होम बोलने वाला था बिकॉज़ जेन्युइनली लीड्स के लिए मेरे को प्यार हो गया वो देख के. बहुत ज्यादा अच्छा. मतलब उनका स्टोरी मेरे को पता था. मैं आई थिंक एक दिन रोहन को पूरा ऐसा बता रहा था कि कैसे जो केन बेट्स है जो चेल्सी का ओनर है, उसने लीड्स का पूरा टीम को खरीदा फिर बेच दिया, ऐसा बहुत कुछ हुआ. anyway, तो वो देख सकते हो. एंड एक लास्ट आई थिंक पता नहीं, मैं एक बंगाली फिल्म में सबको रेकमेंड करता हूँ, एगारो बोल के. वो 1911 में जो मोहन बगान वर्सेस क्या नाम है, नॉर्थ शायर यूनाइटेड या कुछ नाम था, उनके अगेंस्ट जो एक्चुअल मैच हुआ था उसका अकाउंट है. जेन्युइनली अच्छा फिल्म, सबटाइटल्स लगा के देखो अभी अगर किसी को देख. एनीवे उतना ही था. म्यूजिक रिकमेंडेशंस दोगे क्या तुम? तुम लोग बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल इंसान हो तो एक दे दो कुछ. मैं अभी AC/DC के बहुत ज्यादा सुन रहा हूँ. अच्छा. जैसा शूट टू थ्रिल, वो ऐसा एकदम फायर वाले म्यूजिक मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है आजकल. Nitya, anything to recommend? Anything you are listening to right now? Like ऐसा, I don't know if people know this, but there's this Norwegian artist. I mean, she sings in English, but she's from Norway. Her name is Tora Agard. Okay. So she's a guitarist, blues guitarist, and she creates a semi-pop blues song. I think she's great. उसका नया album भी आया है recently, I think a month ago, and I think it's called Woman or Girl, something like that. I don't know. But Tora Agard, she's I think one of the most promising guitarists I've ever heard recently. And उसके, I mean, even if you look at her Instagram, she puts up these lick of the days and blues guitar stuff for everybody to watch. I think she's one of the more, ऐसा upcoming guitar players who are really good. Great man. ऐसा नया म्यूजिक सुनने को मिले, मस्त है. मेरा रिकमेंडेशन बहुत सिंपल है. मैं एक प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें सारे फीफा वाले गाने हैं, वो सुनना बेस्ट है वो. हाँ, मैं सुनता हूँ वर्कआउट करते हुए वो वाला मस्त है. लाइक कभी भी लाइक पूरा नॉस्टैल्जिया ट्रिप होता है. हमको गाने के नाम भी नहीं पता बट इतना सुना है ऐसा है पीछे, तो निकल के आता है वो.
Anyway, तो वही था. Thanks for joining दोनों को. बहुत ही मजा आया. Thank you. Hey guys, so basically that was the podcast. Thanks for sticking by. I hope you had a great time. I really had an awesome time because I got to sit with my friends and discuss something that is very important to us. That is football, obviously. I can't even begin to tell you how much fun we had because we went on for more time and I had to short it down. And it's already the longest podcast, and so that way I think you can understand how much fun we had. So I think that's all for this episode, guys. Thanks for coming by. Thanks for sticking around. I hope you had a great time. And that's it. This is Ayan. You are listening to Some of My Jokes Don't Land. Bye bye.